Assalamu alaikum everyone and welcome to Part 2 Progress 2030. A very big thank you to People Perfect for sparking these conversations where we learn, we network and we grow. Now, आज का जो topic है AI and HR, ये मुझे पता है पिछले 1.5 साल से हम different conferences पे जा रहे हैं, right? जहाँ ये discussions हो रही हैं, इसके बारे में बार-बार ये दोहराया जा रहा है ये topic. But as a host who has been hosting most of these conferences, I feel like we need to think out of the box now. थोड़ा सा कुछ फ़र्क लेकर आए हम इस कहानी के अंदर. हम क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं अभी. वॉट आर वी डूइंग? सो टुडे, आज के दिन पे वी गोइंग टू टच अ लॉट ऑफ यूनिक पर्सपेक्टिव्स. वी आर गोइंग टू सी हाउ AI एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्स our entire workspace, and then we're also going to look at solutions in these spaces. That's actually what today's main focus is: solutions. Okay, and this is also something we've got amazing professionals over here with me. Our highly intelligent, very esteemed and diverse panel comes from marketing, from banking, from aviation, from pharma, and we can actually get a very good idea कि हम कौन से solutions apply कर सकते हैं अपने अपने areas में from their case studies. अब now, one thing I want to say beforehand, this is not like any other panel discussion that you've seen earlier. Panel discussions में कोई सवाल पूछता है, उसका जवाब दिया जाता है, हम डिबेट करेंगे आज. ओके, आपस में तो हम डिबेट करेंगे ही करेंगे. कभी कभार मैं आई विल ओपन द पैनल टू द फ्लोर, फिर आपसे भी एक सवाल और पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैं ज़रूर मैं मांगूंगी, क्योंकि आज टुडे इज़ ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव्स. All right, without further ado, obviously I would love to reintroduce my amazing panelists from Bank Islami. We have Haris Hussain. And sub, please taaliyan bajaye because they've made time out for all of you guys. All the way from Ogilvy, we have Tanya Akhand. We have Ali Tahir from SJNG Pharma. And Haris Tabassum from Jerry's. We've had a couple of conversations abhi tak, so what I know is that it's going to be very exciting moving forward. I hope you guys are ready for this today. Exactly, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही. Yes. All right. So पहले सवाल तो मैं पूछूंगी हारिस हुसैन, and before that I would love to request everybody कि अगर अपना silent करें phone, थोड़ी देर की बात है, उसके बाद we'll get back to our work immediately right after that. So हारिस हुसैन, अब ये सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि शरिया कंप्लाइंस हम देख रहे हैं कि कैपिटल मार्केट्स में इस्लामिक बैंकिंग की एक बहुत बड़ा बर्स्ट आया इस साल, राइट? हम देखें कि ब्रोकरेज हाउसेस तक शरिया कंप्लाइंट हो गए, बैंक्स तो हैं ही हैं. ऑलराइट, सो फ्रॉम बैंक इस्लामी एंड ऑब्वियसली यूर इन द पोजीशन ऑफ HR, आप मुझे ज़रा बता सकते हैं कि जो AI टूल्स हैं जो मुसलमान मुल्कों में नहीं बने हैं और मुस्लिम स्ट्रक्चर्स के अंदर आ रहे हैं, अब दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन टू आस्क कि क्या हमारे अपने वैल्यूज़, कल्चर्स और एथिक्स के हिसाब से ये AI डेवलप हो सकती है? कैन AI एवर बी ट्रूली शरिया अलाइन टू पाकिस्तान व्हेन इट इज़ ट्रेन्ड ऑन वेस्टर्न कॉर्पोरेट डेटा? First of all, thank you so much, Zainab, for introducing with such energy. And thank you to Ibrahim Hassan for setting up this show. Coming to your question, I have a question with everybody sitting here. क्या आप में से किसी का मोबाइल फ़ोन मुसलमान है? या किसी का मुस्लिम शॉपर ज़रूर है, लेकिन मुस्लिम शॉपर ज़रूर है. या किसी का लैपटॉप मुसलमान हो तो प्लीज़ रेज योर हैंड्स. I think नहीं होगा, ठीक है ना? Of course, it cannot be. Similarly, these are tools, mediums to perform certain actions. And when we talk about, AI, it's how we interact with them. And AI does not have any religion or values, but we do. So when we talk about YouTube, when you go to YouTube or when you watch Netflix, and you give certain commands to it, whatever you type, you give some prompts to it. And this generates some data, and that data trains that, medium or that platform, whatever it is. And that is why your experience and my experience differs on a certain medium, right? It can never be same because the data that we are inputting it's computing it, it is storing it, it's getting trained on it, and it's shaping the results that we see. So it's like you can't blindly follow it. As I said, that AI does not have any value system, right? You have. So when you do some searches and when you're using that AI tool, you have to make sure that a cautioned mindset is there. You are attentively
or carefully validating what inputs you are giving and what outputs you are getting. You can't just rely on what it's giving you. You have to be the main driver of AI. AI should not be driving you. Some, like, you know, take examples. आज से 20-25 साल पहले कंप्यूटर्स आए एंड बहुत सारी जॉब्स ख़त्म हो गई, ठीक है ना. एंड आज भी उन कंप्यूटर्स को इंसान ही चला रहे हैं. कंप्यूटर्स ने इंसानों को टेक ओवर नहीं किया आज तक, ठीक है. चाहे वो लैपटॉप्स हों, आज वो गैजेट्स में तब्दील हो गए हैं, कल को वो चिप्स में आ जाएंगे. हमारे यहाँ कोई चिप लगी होगी एंड देन वी डोंट नीड एनी, लाइक ग्लासेस, यू कैन सी मेटा ग्लासेस, ठीक है ना. व्हेन यू वेयर मेटा ग्लासेस यू डोंट नीड एनी फोन. ऑल द एप्स, all the notifications come on your, you know, glass. So eventually ये सब होगा, but human will be there. So ethics को control करना, ethics को, governance को ensure करना, that is the responsibility of human beings. And पहले हमें control human को करना होगा. पहले हमें control human So को I करना think that is Exactly. where it अच्छा, वही नहीं हो रहा. always comes back straight to human development. Yeah. जितना भी आप AI के model लेकर जाए, you need a person to operate the machine. Machines are there to make our lives easy. Definitely. You know, so but it can obviously Terminator, हम देखते हैं उससे. I think वो जो एक डर बैठा हुआ है millennials के अंदर कि Yeah. it can always come back against you. So, but can we talk a little bit about values-based AI design in HR? So, अगर कोई इधर बैठा हुआ है and they want to know कि यार this is a problem in my company, हमारे already inherent biases हमारी companies में, banking में नहीं होता, वो तो checks है, but बहुत सारी let's say state-owned companies हैं, alright, and they have this issue, so they're a little afraid कि अब ये cultural issues का जो एक smash आएगा western ideologies, क्योंकि मैंने ChatGPT पे कुछ 3-4 दिन पहले लिखा उस पे कि talk to me like a sassy black woman. उसने मुझे मना कर दिया, आई कैन नॉट डू दैट, दिस इज़ रेसिस्ट. ओके, सो ये है इसके अंदर एक इनहेरेंट कोई ना कोई बायस या ट्रेनिंग हुई हुई है जो कि हमारे अपने माशरे के हिसाब से नहीं एक्चुअली फिक्स हुई थी. इट इज़ अ डिफरेंट माशरा. जो बैठा हुआ है कंपनी के अंदर वो क्या कर सकता है इसके बारे में? व्हाट सॉर्ट ऑफ कल्चरल फिल्टर्स कैन यू ऐड? इज देयर एनी स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट, इज देयर एनी स्पेसिफिक वे यू कैन ऐड दिस फिल्टर टू एड योर AI? So in this example, if we see, the biasness was initiated by a human, like talk to me like a sassy black woman, right? Yeah. So that's initiated by us. So we have to control ourselves. So when you're using a system in an organization, we have to make sure that the team who is responsible for developing that tool or training that tool, right, is ethically trained, who know that what ethics are, what should be input into this system so that it shapes its responses, right? ये बहुत ज़बरदस्त अभी आपने जो solution बताई है ना, and we should all be very very focused on the human development aspect alongside AI. Do not forget that this is the most important thing. आपकी वो ना foundation सही नहीं होती है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते. But thank you so much Haris for this, and I would love to actually move forward and wrap this up. If you want, there's another. I would love to take a question from the panel. Anybody else has a question on the panel regarding this? नहीं अभी तो आप स्टार्ट करते हैं जो आपका भी है. And अभी हमारे ऑडियंस से कोई सवाल है इसके? Because I can take one question per panelist. Anybody has a question regarding cultural filters? Anil has brilliant DEI happening in his company, माशाल्लाह से. So I know उनके यहाँ कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह AI के हवाले से. Alright, so ठीक है. So बट ये जो आपने बात की है, एंड आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने रैप अप कर लिया इस चीज़ को कि इट इज़ अ सोल्यूशन ऑन इट्स ओन, कि स्टार्ट विद द ह्यूमन व्हेन इट कम्स टू हाउ AI कैन बी बेस्ड ऑन आवर वैल्यूज़, राइट? And just to add further on, ChatGPT एक famous AI है, generative AI है, जो सब लोग use करते हैं. Can anybody tell me that इस वक्त कौन सा version चल रहा है? 5. क्यों? ऐसे ही तो बैठे बैठे वो रोज़ नहीं अपडेट्स कर रहे ना. और ये छठा है पॉसिबली, क्योंकि जो 4 था उसके 2 वर्जन्स आए थे, 4 and 4 not. So they have so the AI basically learns from human also. So जो हम उसमें ट्रिगर्स डाल रहे हैं वो उससे सीख रहे हैं, उसकी बायसनेस हटा रहे हैं. एंड आने वाले वक्त में जिस तरह हम कहते हैं कि जॉब्स ख़त्म नहीं होती, जॉब्स ट्रांसफॉर्म होती हैं. सो आने वाले वक्त में आपको एथिक्स स्पेशलिस्ट मिलेंगे AI के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसके एथिक्स को वैल्यूएट कर रहे होंगे और चेंज करेंगे. अगर आपने इस बारे में नहीं सोचा तो सोचना शुरू कर दें. इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट फील्ड. आई थिंक यस. एंड दिस जिस तरह हम कहते हैं AI इज़ नॉट
challenging jobs, it's actually creating new jobs. जब industrial revolution हुई थी पहली दफ़ा, तो सबसे पहले लोगों ने क्या बोला था ऑटोमेशन के टाइम पे कि हमारे जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगे, बट नए जॉब्स बने, एंड दैट इज दिस इज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 that is actually happening in front of us, and we're all part of it. So now I want to take this question straight to Tanya, and you are in an industry as part of Ogilvy, the biggest name in marketing as an agency in Pakistan. You are at the कहते हैं ना frontline soldiers है AI के हवाले से, क्योंकि suddenly those people who can't draw, who can't paint, can create entire movies, Absolutely. can create entire illustrations. मेरे लिए बहुत परेशानी का बायस था because I'm an artist, and then Okay. to see somebody who cannot draw a line create something like a masterpiece, it is a little scary, It right? So आपके low tier jobs तो impact हो रही है, but in the creative field ये मुझे पता है कि all of this is a huge part of your thing. How has this impacted you? First of all, thank you so much for people to be inviting us over here. I just would like to add on one interesting fact. I think around 14 years ago, I did an internship with Gohar Saab at some point. Yes, so coming back to this, Mashallah. so it's pretty Full circle. interesting. Yes, full circle that I'm sitting here and talking about this. And again, amazing set of panelists, and thank you so much. Love your energy, Zainab. So your question was that how has this impacted Ogilvy? Ogilvy is definitely a creative and digital agency, and it's one of the largest ones in the world, and it's part of the WPP network. And they have a gazillion other verticals and agencies. And it's impacted, yes, the whole marketing and creative aspect of all of this. But what it's done, what we've done, what WPP and Ogilvy has done, that they've created their own tools. They've created their own platform a year and a half ago, so that our employees are equipped to learn all the tools that they require. Very rightfully so, what Haris said earlier, that I don't think it's going to take away jobs as such. It's just going to redefine these jobs. And it's going to bring in a sense of like, how easily can you adapt to this tool right now? So do you think there's any limit? जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं किसी एक शायर के साथ बैठती हूँ, उसको एक आमद आती है, AI को किस तरह आमद आएगी? Again, you know, so that's- when I look at that human Yeah. creativity, that thing that makes us inherently human. So AI can't replace human emotions. I think that's something that can't take away like the essence of it. I don't think it has empathy either. It doesn't, but you know what? It can, like, you know, Haris said earlier, that if we program it in such a way that, you know, if you talk to it, you can tell it, like, if you give it prompt, like, talk to me like an person that is sympathizing with me and I went through this, it will definitely do that. But it is also been prompted somehow, right? It's been fed that data. But coming back to your original question, that it's creating artists, it's creating people, that anyone can make anything right now. But again, it also, at the same time, it's giving people platform to do different things that like me as an HR person, I'm not a creative, but I can sit and make things right now that I thought I could never do from a creative perspective. But for our creatives like designers and creatives and strategists, it's giving them more insight. It's helping them get done with mundane tasks faster. It's helping them, giving up like a plethora of tools that they can work with and create amazing and limitless kind of work right now. I think it augments creativity. Yes, it's Because definitely. as a creative myself, when I've been writing this book for a long time, and somebody told me Oh. कि ChatGPT पे भी Yeah. try putting it on ChatGPT. Yeah. I thought ChatGPT क्या करेगा? It'll give me some very generic information. I was amazed. Yes. Like I was amazed कि जो मैं 7 साल से लिख रही हूँ, उसे 40 मिनट में उसे बेहतर चीज़ लिखकर मुझे दे दी. And for a second I stopped. Yeah, कि, yeah. oh, okay, I am thoroughly replaced Yes. by this tool over here. It is. Either that, or like one of my friends, she used ChatGPT to sell 7 best-selling New York Times bestsellers. Yeah. Okay, और उसने ChatGPT पे पूरा create किया है. So Yeah. yes, it can augment and make you able to do things that you probably weren't able to do before. But इस पे एक definite एक सवाल मेरा उठता है कि Yeah. Pakistan in a global stage when it came to advertising was lagging behind for the last 10-15 years. इससे Yeah. पहले Yeah. it was very much ahead. Yeah. कुछ issues हुए हैं अपने Right. inside the industry. So उसके वजह से
in the global scale, हम एक कोई level playing field नहीं था, but I feel like ChatGPT might have changed things a little bit and put us all on a playing field. I What do you think say? I agree with you. I agree with you 101% on that aspect. So Ogilvy has its own tools right now. Everything from creative concepts to actually putting and talking to agents over there. Okay, you know, review my work, critique my work. Look at it from a lens of view from my client. One of our clients is Coca-Cola, Nestle, BAT, you know, name it, and we have those clients. But we can also critique it before we're showing it to anybody. And on that aspect, it also kind of gives us a lens that you're talking about, that, you know, look at it, critique it from a point of view that if I want to show it on a global level, how can I incorporate that? It also incorporates cultural insights as well. So Yeah. in that way, I think it's like amazing for Pakistan to sit and explore that for the right reasons, and it can bring us on different platforms in the world right now. वैसे अभी मैंने शुरू में सबको कहा हम तो एक जुगाड़ू कौम है हमारी इनोवेशन उधर ही शुरू होती है उधर ही खत्म होती है बट Yeah. आई फील ChatGPT might change that for us. It can, and there's another thing that I want to add on over here, that using AI is not going to replace jobs, like it's going to create new jobs, but it's going to replace tasks that we're doing. Those mundane, Yes. boring tasks that take up so much of our time. And for everyone, from creatives, it's going to free up their time so they can think about more things. From designers to strategists, have more insights. And even for HR, it's going to free up so much more time. So I think that's what AI is going to do right 100 now. साल पहले एक जॉब होता था पंखा हिलाने वाला और अब हमारे पंखे घर पे आपने बत्ती जलाई उसे right. स्विच ऑन की और पंखा चल गया है सो बट Yeah. वो जो इंसान था ना वो शायद कुछ और कर रहा है अब Right. काम कभी नहीं रुकता है दुनिया Yeah. के अंदर आई फील लाइक But you just have to adapt. That's Yeah. the whole thing right now. That And that is for round number either- 2. Yes, Yes. you're very, very right. And this is Yeah. something that I do want to talk about, Yes. adapting. And it's a whole conversation कि adapt, सब कहते हैं करो, किस तरह? What are the steps? And that is something we're going to move forward. But before we close this conversation, I'd like to open this to the panel. Would you have any question that you'd like to ask? Anything? Just a comment. Emotions के ऊपर हम बात कर रहे थे कि AI training, and I'm sure that people are working on it. And China बहुत ज़्यादा काम कर रहा है इसके अंदर emotions, jealousy, इस तरह की चीज़ें robots के अंदर डालने के लिए. And jobs ख़त्म हो या ना हो, trust me, these robots will make better wives and husbands. And और इतना obedient या इतना अच्छा ना हमारी हम बस कभी बातें हो ना नहीं सीख लें। पाएंगे honestly. So हमें उस तरफ से भी सोचना चाहिए. AI jealousy अभी आपने बात किया. I don't know अगर किसी ने experience किया है. Has anybody experienced AI jealousy? मैं आप लोगों को एक आइडिया देती हूँ. अभी आप जाए चैट जीपीटी पे कुछ भी लिख लें, उसको कॉपी पेस्ट करें और पेस्ट जाके perplexity.com पे पेस्ट कर ले कि ये मैंने चैट जीपीटी से निकाला है, मुझे बताओ तुम क्या कर सकते हो. इट विल ऑलवेज गिव यू अ बेटर आंसर. दिस इज AI जेलसी और ये आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता. AI बायसेस, AI जेलसी, इतनी सारी क्रेजी चीज़ें हो रही हैं. बट इफ़ वी लेवरेज दिस, अब आप सोचिए, ये तो हम बचपन में देखते थे ना कि कोई एक पेरेंट होता है जो 2 बच्चों के साथ ये करता है, आपस में compete करवा रहा होता है. But बेहतर, those kids get better and better. Not that I agree with that tactic, but AI jealousy does work. And ये जो अभी आपने बात की है, just teaching those emotions will change the game. क्योंकि if we can create mini humans, Exactly, yes. उससे ज़्यादा आसान क्या है हमारे लिए. But thank you so much, Tanya, and as always, very, very informative speaking to you. Now I want to talk about AI versus intent, and this is a question I'm going to ask you, Ali. And I know कि आप में और मेरे में एक बहुत मेजर कॉमनैलिटी है कि हम लेबर Exactly, के बारे में incentive, बहुत बिल्कुल, वी आर ऐसे। वेरी, क्योंकि मैं भी ILO के साथ काम करती हूँ, इनका भी लेबर फोर्स के साथ बहुत पाला पड़ता है. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क इन पाकिस्तान. हम जब ये वाले सेशंस करते हैं ना, हम वी डोंट टॉक अबाउट फैक्ट्री स्पेसेस एंड व्हाट हैपेंस इन दीज स्पेसेस. हाउ डज AI actually affect this? Now AI tools in factories or manufacturing setups are now commonly used to track units, output per hour, attendance trends, error rates, time spent idle, और ये सारे को further automate कर रहे हैं than what the Japanese did or what the British did, right? So if an AI model detects that a worker's performance is dropping, it might label them as low productivity. अब ये हमें नहीं पता कि वो मार खाकर आ रहा है, अपनी बीवी से लड़कर आया है, इधर कोई मसला हुआ है, कोई एक पर्सनल इशू हो सकता है, and we know this in HR, it is so important.
वियॉन ग्रुप ने वेरी रिसेंटली एक डोमेस्टिक वायलेंस पॉलिसी निकाला था। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिकग्नाइज किया कि हम लेडीज़ को तो लेकर आ रहे हैं बट हम एड्रेस नहीं कर रहे उनके सबसे बड़े इश्यूज़ क्या हैं ज़िंदगी में। और जो बंदा घर पे अब्यूज़ एक्सपीरियंस करे वो हो ही नहीं सकता है प्रोडक्टिव इधर, हो ही नहीं सकता। रोबोट्स नहीं है ना, आप ह्यूमंस है। बट नाउ AI कम्स इनटू द स्टोरी ओवर हियर कि अगर परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रही है किसी की, AI, have you experienced qualitative data or just quantitative data कि उसने फ्लैग कर दिया ये unproductive है? Okay, thanks Zanab for putting a very sensitive question to me. And first of all, thanks to Ibrahim and Peoples and all of you. And it's really an honor to sharing a stage and platform with you people. Okay, as far as your question is concerned, first of all, I would like to ask one question from the people. Can you say what's the difference between human and humane? ह्यूमन और ह्यूमेन का फ़र्क अगर किसी को मालूम है, वो जो उर्दू में कहते हैं ना कि आदमी और इंसान का फ़र्क होना, ठीक है जी। तो एक स्पेल है ई, वो ऐड हो गया ह्यूमेन में, लेकिन इंसान और ह्यूमैनिटी के साथ जब आप ह्यूमेन लेते हैं तो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में चला जाता है, वो मीनिंग में बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो ह्यूमेन मीन इमोशंस, कंपैशन, मर्सीफुलनेस, काइंडनेस। अभी जो बात कर रहे थे हारिस, ऑफ कोर्स यही चीज़ है, लेकिन ये चीज़ चैट जीपीटी में नहीं आ सकता, ये एआई में नहीं आ सकता। अच्छा, अब बड़े सोफिस्टिकेटेड, वी आर यूजिंग क्वाइट यू मे से सोफिस्टिकेटेड एंड मॉडर्न डैशबोर्ड्स टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल। डाटा बड़ा अच्छा हमारे पास आ रहा होता है, एनालिसिस बड़े अच्छे हमारे चल रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है उसमें एक मैं स्टोरी शेयर कर रहा हूँ आपसे, ऐसा रियल स्टोरी बिल्कुल जो मेरे साथ हुआ। आई यूज्ड टू बी छोटा एट दैट टाइम, ऑलमोस्ट 15-18 ईयर्स अर्लियर। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि आई वॉज वर्किंग विद माई बॉस। तो मेरे बॉस ने कहा कि यार अली, तो पता है वो खातून को जानते हो तुम, जो एक लेडी चेकर हमारे पास थी। तो आई सेड कि यार आई नो हर। तो कहता है यार वो छुट्टी मांगने आई है मुझसे संडे की, और आई सेड कि नो, संडे तो ओवर टाइम है, छुट्टी नहीं मिलेगी आपको। तो शी स्टार्ट क्राइंग ना, वो रोना शुरू कर दिया उस खातून ने। कहती है सर मुझे संडे को मैं काम नहीं कर सकती। तो अब जो मेरे बॉस थे, मैंने कहा सर अजीब सी बात, ऑकवर्ड की मतलब क्वाइट वियर्ड यू में से, कि संडे को बुलाने पे वो इतना ज़्यादा फील कर रही है। तो कहता है नहीं अली, यू आर मिसिंग अ पॉइंट। कहती है उसने मुझे स्टोरी सुनाई कि उसका हस्बैंड जो है, ही इज़ वर्किंग कंटिन्यूसली इन नाइट शिफ्ट एंड शी इज़ वर्किंग इन डे शिफ्ट। तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक दिन मिलता है संडे का, जो बैठ के साथ लंच कर सकते हैं या डिनर कर सकते हैं, वन डे ओनली। अब मेरा सवाल ये बनता है कि वो जो उसका हस्बैंड, अगर मैं आज लाता हूँ उसे और एआई के टूल्स के थ्रू उसको असेस करता हूँ, तो एआई को नहीं पता वो बेचारा किस हालात से गुजर रहा है, उसकी बेगम के हालात से गुजर रही है, उनका स्ट्रेस लेवल क्या है, उनकी एंजाइटी क्या है, उनके इश्यूज़ क्या है, कुछ नहीं पता उन लोगों को। लेकिन क्या एआई की बेस पे डाटा जो मैं डाला हुआ है वो बता देगा जी लो परफॉर्मेंस, लो प्रोडक्टिविटी, पुअर परफॉर्मेंस, तो क्या वो जस्टिफाइड होगा? ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब सेम यही चीज़ हम जो बात कर रहे होते हैं, बट वी आर एक्सपीरियंसिंग, वी आर अ काइंड ऑफ लेबर इंटेंसिव सोसाइटी में से। आपको पता है कि अगर हम पॉपुलेशन का डेमोग्राफी निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, तो 18 to 35 ईयर्स का जो एज ब्रैकेट है उसमें क्या परसेंटेज आएगा हमारा? एनी आइडिया? दैट कंप्राइजेस 35% ऑफ पॉपुलेशन, 30-35%. Almost 6 to 7 crore, you may say 70-75 million people falls in that particular age group. Yeah. And that's the blessing for us. मतलब ये age group 18 to 35 is blessing हमारे लिए, but we are not able to utilize that particular resource with us. क्यों? क्योंकि हमें इस्तेमाल करना नहीं आता। Secondly, वो जो हम बात कर रहे थे ह्यूमन डेवलपमेंट की, most of them they are unskilled. यूथ है, यंग है, अनस्किल्ड है, कोई स्किल नहीं है उनके पास। अब आप आ जाएं, मैं आपको लेके चलता हूँ, सैरियो क्रिएट करता हूँ मैं एक आपका, और मैं लेके चलता हूँ आपको टेक्सटाइल कंपनी में। हमारे यहाँ नॉर्मल को टेक्सटाइल्स है आप में से यहाँ पे होंगे। टेक्सटाइल का एक नॉर्मल जो नॉर्म है ना, वो अगर हम बात करूँ जो बड़ी टेक्सटाइल कंपनी से 20,000, 25,000, 30,000 का हेडकाउंट तो मेंटेन कर रहे हैं, पेरोल मेंटेन हो रहा है, ऐसे ही जनाब। ओके, अब 20, 25, 30,000 पीपल का पेरोल मेंटेन करना इज नॉट इजी टास्क, इज हेल ऑफ जॉब। अब That's why we go to people. एग्जैक्टली। अच्छा, अब उस
लेबर इंटेंसिव जो आपका पॉपुलेशन साइज हो गया, उसे एआई के बीच में लेके आना, नंबर वन. देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ एआई, नंबर टू. देन देयर आउटपुट, देयर प्रोडक्टिविटी, देयर एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, सब क्वेश्चन मार्क हो गए. क्योंकि इतने बड़े चंक, इतना बड़ा साइज आपको मैनेज करना ही बड़ा मुश्किल काम है. But how do you AI के through- investigate it? Like आपके तो generative आता होगा report. How do you investigate it? देखिए उसमें आके हमारे पास कोई टूल ऐसा नहीं है कि हम साइकोमेट्रिक टेस्टिंग कर रहे हो, हमको आईक्यू लेवल चेक कर रहे हो, स्ट्रेस के लिए कोई हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो. एक होता है कि ठीक है यार ये प्रॉब्लम आया हुआ है, इसको निकालना है. देखिए हमारे यहाँ जो ना डिस्प्रीन थेरेपी ज़्यादा चलती है, 2 गोली दो, सर का दर्द भगाओ एंड दैट्स इट. हमें इससे कोई गर्ज नहीं होती कि Band-Aid डीप डाउन crowd. एग्जैक्टली वो उसके रूट्स में क्या है, इन्वेस्टिगेट करना है नहीं करना. देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोडक्टिविटी. मशीन का बंद ना होना वेरी इंपॉर्टेंट. मशीन चलती रहनी चाहिए. उसके लिए क्या है भाई, डिस्प्लिन लें आप और काम स्टार्ट करें. But वो I जो- feel like इधर जो हारिस ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि the human element is so important कि आपने ये बता दिया कि एक प्रॉब्लम है. You can't figure out how to take such a big data set and उसमें से qualitative data किस तरह निकालो. So don't you think this is a time for human intervention, counseling, exit routes, इस तरह के कोई solutions होने चाहिए लोगों के पास in such a setup? देखिए एग्जैक्टली नाउ द अवेयरनेस सर जैसे आ रही है, जैसे लोग हो रहे हैं अब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग. पता है पहले पर्सनल एक हुआ करता है डिपार्टमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसका एचआर में. उसका रीज़न ही ये हुआ, हाँ. पर्सनल मिसिंग एलिमेंट वाज ह्यूमन इंटरेक्शन. यू में से कंपैशन, एम्पैथी, हाँ. सिंपैथी, उसका एक मिसिंग एलिमेंट था. वो जो एचआर आया है वो बना ही इसलिए, वो डेवलप इसलिए हुआ. यू हैव टू डील विद द पीपल, यू हैव टू इंटरेक्ट विद द पीपल, यू हैव टू यू में से वर्क ऑन द पीपल टू गेट बेस्ट फ्रॉम देम. तो ये जो अब बात कर रहे हैं काउंसलिंग का है, बिल्कुल सेशंस हो रहे हैं अब. Yeah. अच्छी कंपनीज में नो डाउट इसमें हो भी रहा है. जो आपके बड़े कंपनीज हैं, दे आर यू में से कंडक्टिंग सम काइंड ऑफ टेस्ट. साइकोमेट्रिक टेस्टिंग हो गया उनका, उनका साइकोलॉजिक टेस्ट हो गया उनका, बिफोर हायरिंग वो तमाम चीज़ें जो कंडक्ट हो रही होती हैं वो सारी But चीज़ें हो रही होती Ali, हैं. imagine if they get empathetic and they get sensitive, वो भी politics हमारी तरह करना शुरू कर देंगे. Yeah, no, so then we'll have another problem over here. Exactly, Right? ये- So I feel like this is a never-ending conversation on that. But there needs to be limits that are placed by the factories देखिए itself. हो सकता है, हो सकता है. देखिए बाय एट लार्ज इन सोसाइटी वैल्यूज़ हमारी क्या है ना. देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक बड़ी मिसाल दी जाती है कि अदल फारूकी अहद फारूकी में ही चलेगा ना. हाँ. अगर आज हम अदल फारूकी नाफिज करेंगे तो सबके हाथ कटे हुए होंगे. कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है, लेकिन है प्रॉब्लम है. सब चोर अब हैं. आपका सोसाइटी का लेवल जो है, ये जो एआई का, कंप्यूटराइजेशन का, ऑटोमेशन का, जब ये वहीं से ट्रेंड आएगा, कल्चर वहीं से आएगा. देखिए कल्चर का डायरेक्शन क्या है, दैट्स फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड. ग्रास रूट पे अवेयरनेस आता है, कल्चर चेंज नहीं होता. अगर मैं आज कहता हूँ सिंधी टोपी अजरक, मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता. मैं तो एक हारी हूँ, मैं तो गरीब जो कहते हैं ना, वो मेरे लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए बड़ी बात है. मैं अजरक कहाँ से पहनूंगा, मैं वाइट ये कॉटन आपने कैसे बिल्कुल पहनूंगा. वही बात की है जो अभी फारूक सब्जवारी, ही इज द सीईओ ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. उन्होंने अभी अभी EHG कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि let's stop teaching AI to everybody, let's Exactly. only teach it to board members. एग्जैक्टली ऐसे ही Okay, है आप बिल्कुल. डायरेक्टर सीईओज बोर्ड मेंबर्स को ट्रेन करें, ट्रेन बाकी खुद हो करेंगे जाएगा. ऑटोमेटिक. देखिए आप ऑटो ऊपर जाएंगे. इब्राहिम जैसे काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अभी वो टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं ना. उन्हें पता है कि ये अवेयरनेस वहाँ से नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट में आएगा सारा ये. वो सबको और इम्पैक्ट वही करेगा. तमाम चीज़ें एग्जैक्टली. तो एआई पे, ऑटोमेशन पे, अब देखिए हमने क्या किया, टेक्सटाइल की बात करें, कुछ कह लें कि नई मशीन्स आ गई, लोगों ने क्या किया, स्ट्राइक पे चले गए कि नहीं जी ये तो खा जाएंगे, हमारी जॉब्स खा जाएंगे. लेकिन वही बात है, उन्हें समझाना कि नहीं, ये आपके काम को, दैट विल बी मेक वैसे काम जो ईजियर करके देगा आपको. इफ़िशियंसी बढ़ रही होगी, लेकिन समझाना पड़ेगा आपको, बताना पड़ेगा. नो डाउट काम हो रहा है, बट आई थिंक इट विल टेक अभी टाइम. इट्स अ लॉन्ग जर्नी. एंड हमारा जो कहते हैं कल्चरल इश्यूज, सोसाइटिकल वैल्यूज़ जो हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा हमें. मुझे जो लगता है आफ्टर द 3 conversations we've had is पाकिस्तान को एक नेशनल तरबियत प्रोग्राम की ज़रूरत है. ओके पहले हम ऐसे अपने ही है. आप को सिखाएं तरबियत, फिर हम बिल्कुल. आगे जाके AI को सिखाएं. सो वी हैव अ डबल एज स्वॉर्ड एंड दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी नीड्स टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, क्योंकि आप अपने कंपनी के कल्चर्स क्रिएट करते हैं सब के सब. कुछ Exactly. लीडर्स हैं इधर, कुछ लीडर्स के नीचे पोजीशंस में हैं. डजंट मैटर, whoever you are responsible for this culture and not just over here. हम कई दफ़ा ये सुनते हैं कि पाकिस्तान का नाम बाहर क्यों ख़राब होता है, क्योंकि हमारे ही लोग बाहर जाके अजीबोगरीब हरकतें कर रहे होते हैं. अब नाउ इमेजिन दैट into our AI. That's what scares me. Okay, so a little bit more. So you're very right. And इसके पीछे का काम
हमें करना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ अ थैंक यू सो मच अली ओवर हियर एंड आपने जो कन्वर्सेशन की है इसके बारे में. अब नाउ वी आर कमिंग ऑल राउंड एंड वी आर गोइंग टू कम स्ट्रेट टू हारिस साहब फ्रॉम एविएशन F&B. जेरीज के अंदर आपके बहुत सारे एरियाज़ हैं काम करने पे. सो ऑब्वियसली आपके तो एक्सपीरियंस ही इतने सारे प्रॉब्लम्स हुए होंगे और अभी रिसेंटली जेरीज ने लॉन्च किया अपना आयरिस का प्लेटफॉर्म जिसमें पूरा का पूरा एविएशन इंडस्ट्री ऑन वन प्लेटफॉर्म हो जाएगा. एंड इट्स दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट गेम चेंजर्स इन द पाकिस्तान. ये जो कॉर्पोरेट स्पेस के अंदर अभी जो आया है. अब ऐसे कहानी के अंदर व्हेन AI enters the story, I want to really know how do you calculate that risk. अभी तो इतने बड़े बड़े रिस्क के बारे में हमने बात किया, हम ही एक इतना बड़ा रिस्क है, you know. So how do we combat that in the aviation industry? First of all, thank you for the platform sharing, and then the risk factor. I think so. There are 4 major areas जिनको हमें address करने की ज़रूरत है. AI है क्या? AI algorithm और data है. Data जब आपके पास change होना शुरू होता है, system learn करना शुरू करता है, algorithm change होना शुरू हो जाता है. And this is where the risk arises. अगर आप ऑफ द शेल्फ AI को देखें आज से इन द डेवलपमेंट फेज 7.5 years बैक एंड टुडे, आपके रिजल्ट सेम नहीं है. क्यों? जो डेटा फीड हो रहा है, जो सर्चेज हो रही हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके आंसर्स की बेस पे नया डेटा बन रहा है, नया एल्गोरिथम्स बन रहा है. और AI एक लेवल पे जाके अपना एल्गोरिथम खुद चेंज करता है. उसके लिए आपको डेटा की ज़रूरत नहीं होती. दिस इज़ वेयर थिंग्स गेट रियली ट्रिकी. हम जब स्ट्रेटेजिक HR की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, फ्यूचरिस्टिक ले डाउन. उसके अंदर हमारे पास जो लर्न सिस्टम होता है वो कई ऐसे भी आंसर्स हमें दे रहा होता है जो हमें ज़रूरत नहीं होती. हमें कुछ ऐसी भी चीज़ें दे रहा होता है जो इस कल्चर, इस कंट्री, इस बिजनेस सिनारियो से रिलेटेड नहीं होती. इधर आपके पास बहुत सारे रिस्क एरियाज ऐसे आते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, जो वर्क फ्लो से रिलेटेड होते हैं, जो प्रोसेसेस से रिलेटेड होते हैं, जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की होती हैं. जब वो एक आम आदमी के हाथ में आती हैं, जैसे जो डेवलप्ड नहीं है, तो वो क्या करता है कि वो उसको माल फंक्शनिंग के अंदर लेके जाता है. कैसे लेके जाता है माल फंक्शनिंग में? माल फंक्शनिंग में ऐसे लेके जाते हैं, उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो उसकी जॉब से रिलेटेड नहीं होते. अब उसके अंदर 2 एरियाज हरकत में आते हैं. एक तो सिस्टमेटिक प्रोसेसेस आते हैं और एक पर्सनल प्राइवेसी होती है. जैसे किसी भी एक बैकग्राउंड का बंदा है, उसकी एक बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट्स हैं. जब दूसरे बैकग्राउंड के अंदर वो रिक्वायरमेंट्स हाईलाइट होनी शुरू होती हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग फ्लॉन्टल हो जाती है. और प्राइवेसी तो वैसे वो तो खत्म हो जाती गेटिंग है. अफेक्टेड. हाँ, Yeah, of course. डेफिनेटली. देखिए, ना सिर्फ बिजनेस प्राइवेसी बल्कि वर्क फ्लोज और इंटेलिजेंट डेटा की प्राइवेसी और पर्सनल प्राइवेसी सब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. हमारे पास कई बार ऐसे होता है कि लोग डीफोकस हो जाते हैं, उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो उनसे रिलेटेड नहीं होती. क्यों? इंटेलिजेंट सिस्टम्स आपको वो आंसर्स दे रहे होते हैं कि जो आप मल्टीपल फ्लैंक से मल्टीपल वर्टिकल्स के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते. एग्जाम्पल ले लेते हैं, एविएशन का कोई लेना देना नहीं है F&B के साथ, लेकिन F&B वाले को वो डेटा ज़रूर नज़र आ रहा होता है जो उससे रिलेटेड नहीं होता. और ऐसे एरिया में वो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है जो इफेक्ट कर रहा होता है ना सिर्फ उसके बिजनेस को बल्कि जो उसका पैरेलल बिजनेस है उसको भी. Have you experienced something like that over there? Of Like course, a lot. you have? Yes. Oh, and how do you go about resolving a situation like that? स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स देन. इसलिए कि अगर आप उसको अनकंट्रोल्ड एवेन्यू में छोड़ देंगे तो ये ग्लोबल डेटा पे काम करता है. Oh, okay. जब आप ग्लोबल डेटा पे काम करते हैं, आप किन इंडस्ट्रीज़ को फॉलो कर रहे हैं? जो ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ हैं, एविएशन है, ग्लोबल है. हमारे कंट्रोल्ड बिजनेसेस हैं, वीज़ा है, एयरपोर्ट सर्विसेज हैं, ग्लोबल बिजनेसेस हैं. फ्रेट एंड लॉजिस्टिक्स है, ग्लोबल बिजनेस है. F&B है, फॉरेन पार्टनर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं आप, वो भी ग्लोबल बिजनेस है. तो होता ये कि वहाँ के लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वर्क फ्लोज, ये सब चीज़ें पाकिस्तान में लोकल इंडस्ट्री में कैसे ये कभी कंप्लायंसेस में, अब जैसे GSP प्लस है आपके एक्सपोर्ट सेंट्रिक कंपनीज में, आपके बैंकिंग ऑन इक्वालिटी पॉलिसीज, आपके मल्टीपल इंडस्ट्रीज के मल्टीपल कंप्लायंसेस है. डू यू थिंक दैट दिस जो अभी आपने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया है, वुड दैट इम्पैक्ट आवर एबिलिटी टू फॉलो अ कंप्लायंस? कंप्लायंस इन कंट्रोल्ड बिजनेसेस ओनली. ओके. इसलिए कि वहाँ पे एक आपके पास SOP आया हुआ होता है. हाँ. SOP किसी पार्टनर के थ्रू मॉनिटर हो रहा होता है या उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं. वहाँ पे जब AI अपने डिसीजन मेकिंग शुरू करता है तो आप अक्सर, ऑफन या सेल्डम नहीं, अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम आप ब्रीच कर जाते हैं. अब एक फैक्टर तो ये होता है कि जो ह्यूमन फैक्टर है वहाँ पे वो बिल्कुल निगेट हो रहा होता है. हाँ. आपको मशीन बात कर रही होती है लाइक एन ATM. आपने उसको कमांड दी, उससे कमांड को प्रोसेस करके आपको दे दिया.
विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उस कमांड के पीछे एक ह्यूमन फैक्टर क्या है, एक डायमेंशनल पॉलिसी क्या है, और किधर जाके उसको रुकना है अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर. So this is the major takeaway that the audience has over here is that जो भी आपके पैरामीटर्स बने हुए आपने कंट्रोल्स डालना ज़रूरी है, जिस तरह हम इंटरनल कंट्रोल्स डालते हैं ऑडिट के वगैरह जो ऑलरेडी ह्यूमंस के साथ कर रहे हैं. आई फील लाइक हाउ यू ट्रीट AI इज़ नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू ट्रीट people, right? And we should, and a lot of times we have this tendency of thinking yeah, it's like a robot, you can say or do whatever you want. It's an intelligent robot. It's a So that child who is changes. learning. It's And a जो child who is हमारी learning. हमारे अंदर जो एक अशरफल मखलूकात है ना, जो हमारे अंदर का, I feel like it challenges that. It challenges that very heavily and makes us actually push further to become better at least in what we're doing. HR के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हमने 1-2 साल में बहुत massive jumps देखी हैं पाकिस्तान के अंदर. ये तो मैंने देखा है standing in front कि not just the AI inclusion but the softwares, the different IT, आपके technological advances के अलावा भी आपके compliances के advances है. पाकिस्तान already आगे बढ़ रहा है इस मामले में. But I do feel that AI is pushing us in a direction that we were not used to initially. And now we are forced to think in that area. आज का भी जो session था, we were actually wanting to force you to look at this problem from a very different lens. जो हमने चीज़ें बात की हैं, very different areas. So ये जो 4 हमारे speakers हैं, चारों ने बिल्कुल अलग takeaways अपने दिए हैं. I would want to really open the floor for the rest of the audience कि आपको क्या लगता है, कोई ऐसा input है जो आप अपना बता सकते हैं, कोई ऐसी कहानी है जो आप share करना चाहते हैं, कोई case study है, कोई एक any opinion, any point, because we have some amazing people from the HR fraternity here today. I would love to ask these questions. आप लोगों से. Anybody who would like to actually add? If we could just have, and I would love to come to you right after that. Bilkul. Usman, yes. Can we give? Yes. हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान बट AI एंड कल्चर पे बात हुई थी, तो आई वुड लाइक टू शेयर माय own real life experience. I was headhunting for a Medicare business. The owner called me and gave me what exactly he wanted, head of internal audit. और चूँकि हॉस्पिटल बैकग्राउंड से होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमारी इंडस्ट्री का हो, ऐसा हो, वैसा हो, and all that thing. And I used AI to actually get to those right people, and I did. And I interviewed them, और जो मेरी प्रायोरिटी थी मीटिंग द ओनर एंड द बिजनेस, उस हिसाब से मैंने अपने टॉप 3 रिकमेंडेशंस भेजी, और साइड में 2 और रिकमेंडेशन भी भेजी. इनको भी देख लीजिएगा, बट टॉप 3 ये हैं. वो इंटरव्यू प्रोसेस हुआ, एंड सरप्राइजिंगली द 5th रिकमेंडेशन वाज selected as a top priority, and that was the last expected जिसको मैं सोच रहा था, because और AI से सारा मैंने यूज़ किया. Have you guys experienced anything like this? Totally मैंने AI यूज़ किया था उसके अंदर, और बिल्कुल उसने खट मुझे exactly वो लोग दे दिए थे. And that made me think यार why, and then he asked me कि ओनर के तुम जाके उसके ऑफिस में negotiate करोगे, and this is the price जो हम दे सकते हैं, otherwise तुम्हारी भी डील गई. So I went to Chandigarh Road and negotiated with that guy, but when I saw that guy I was totally shocked. वो बड़ी सी दाढ़ी, टोपी, एक अपना एक ख़ास जो इस्लामिक स्टाइल है उसमें वो बंदा, बड़ी टखने से ऊपर शलवार, वेरी एजुकेटेड. मैंने कहा यार इसको उन्होंने सेलेक्ट किया. आई हैड नॉट मेट द ओनर इन पर्सन, आई हैड फ़ोन पे सारी बात हुई थी. बाद में जब मैं आई निगोशिएटेड एंड द डील वाज स्ट्रक, ही वाज हायर्ड. जब मैं अपनी पेमेंट लेने गया तो उस पूरे मेडिकेयर बिजनेस में सारे लोग वैसे थे. तो दे हैड hired somebody, one of them. So they wanted somebody जो हमारे कल्चर में फिट हो सके. वो AI ने मुझे नहीं बताया था, और ना ही उसने मुझे ब्रीफिंग में बताया था. But it still created that space for you. उसने मुझे बता दिया अपने पास से कि यार ये भी देख लेना, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है कि कल्चर में फिट कौन होगा और कौन नहीं फिट होगा, that really matters. वो AI शायद अभी ना बता सके आपको. उसमें आपको अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस और लगानी पड़ेगी, और दोनों को साथ लेके चलेंगे, तो then you'll get at the right answer. I was lucky, but I'm just sharing this कि सिर्फ don't blankly AI पे rely मत कीजिए. Human intelligence I still feel is superior. ठीक है जी, thank you. Yeah, of course, that Ashraf al-Makhlukat. सबके सब, yes, the lovely lady at the back here, yes.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सब जानते हैं बहुत सारे लोग अर्शिया हुसैन, मेरा अपना फील्ड कह लें, एक्सपीरियंस कह लें, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है एचआर में। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पे। आपने कहा कि कोई अपनी स्टोरी शेयर करें या कोई भी आपका सवाल हो। सवाल मेरा सबसे है, मेरी अपनी ज़ात से भी है, हसन भाई से भी है, इब्राहिम साहब से भी है और जितने भी प्रोफेशनल्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम जब भी बात करते हैं हम सिर्फ प्रोफेशनल्स के सर्कल में बात क्यों करते हैं? और जब हम यही प्रोफेशनल्स अपने वर्क स्टेशंस पे जाते हैं एज एन एचआर, हमारे पास उस तरह के कैंडिडेट्स आते हैं जो ग्रूम नहीं होते। हम जानते हैं कि हमारी कौम का अलमिया क्या है, हम जानते हैं कि 4 साल का बीएस करने के बाद भी हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि हमें ईजिली एक इंटर्नशिप भी मिल जाए, क्योंकि हम वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों को ज़ाया कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। और वो पैसे हम किस तरह से दे रहे होते हैं हम सब जानते हैं कि किस तरह से वो 4 साल की फ़ीस मिलियंस, यानी कि अगर मैं एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो 4 साल में तकरीबन 1 मिलियन अमाउंट चला जाता है, क्योंकि मैं भी अपने बच्चों की फ़ीस पे कर रही हूं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो खुद भी स्टूडेंट भी हैं और अपने बच्चों के लिए ये एक्सपेंस उठा भी रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी हमारे सामने वो बच्चा इतना ग्रूम होकर नहीं आता। हम उनकी ग्रूमिंग के लिए बात क्यों नहीं करते? हम उनको AI की इस तरह की ट्रेनिंग्स क्यों नहीं देते? हम उनको क्यों नहीं बताते कि आपको अपनी CVs ऐसे बनानी है, आपको अपनी पर्सनल ग्रूमिंग ये करनी है? आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, थोड़ा सा उसको ChatGPT को एक प्रॉम्प्ट दे दें कि मैं एज अ इंटर्नशिप अप्लाई कर रहा हूँ फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए, मैं एज एन HR अपने लिए एक इंटरव्यू देने जा रही हूँ, मैं ऐसे prompt दूँ। वर्क रेडीनेस, पर्सनल एक्सीलेंस आप तो ChatGPT AI टूल से सीख हाउ टू सकते हैं। यूज़ AI हम सब जानते हैं हमें किस तरह से AI को यूज़ करना है, मगर हम उन बच्चों के लिए बात नहीं करते। अगर हमारे पास ऐसी CV आती है तो हम उस CV का मजाक बनाते हैं, हम उस कैंडिडेट को फ़ौरन साइड पे कर देते हैं कि हम इसको क्यों बुलाएंगे, हम इसकी स्क्रीनिंग क्यों करेंगे? अगर हम उनको ग्रूम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या हम सब बैठ के बातें बनाएंगे? आपने जो बात की है, आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू। मेरा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पाकिस्तान, जहां हम एग्जैक्टली इस गैप को एक्चुअली 70+ यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी वी आर ट्राइंग टू फिगर दिस आउट एंड डू दिस। सो इंशाल्लाह आफ्टर दिस सेशन लेट्स टॉक। और बिल्कुल अच्छी बात की है एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था कि 18 to 35 ईयर्स वेज क्या है, एक्चुअल नंबर 66% है। 66%, almost 70%. 7 out of 10 of the people we meet are from the youth, okay, are from the future, and we are not developing them. And ये आपने जो point कहा है कि AI can actually be used in that area, क्योंकि ये recruiting से एक stage पहले की बात कर रही हैं आप, वो है ना foundations हमारे HR के किधर हैं। So ये बिल्कुल सही बात की है, thank you so much for that, and it's very important for everybody to know this. Yes. अब एक आखिरी सवाल है, इनके ये साहब हैं पीछे, right behind उस्मान। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ जिसमें स्पेशलाइज कर रहा हूँ मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर। और आई केम हियर टू अटेंड दिस सेमिनार ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। और मेरा ये आज की डिबेट के बाद ये कहना है कि हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अब बात ह्यूमन रिसोर्स से आगे होनी चाहिए, क्योंकि ऑल ह्यूमंस आर रिसोर्सेज नाउ, वी शुड कन्वर्ट देम एज अ कैपिटल। सो आप कैपिटल जब आप उनको बनाएंगे, जब आप उनकी स्किल पे इन्वेस्ट करेंगे, जब आप उनके एक्सपोजर पे इन्वेस्ट करेंगे, जब आप उनकी एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फिर वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। सो अब डिबेट जो है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की बजाय ह्यूमन कैपिटल पे होनी चाहिए, जहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी HR के लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम एज अ ह्यूमन कैपिटल के तौर पर AI को यूज़ करके अपने आप को कैसे ह्यूमन कैपिटल बना के अपनी परफॉर्मेंस को कैसे एक्सट्रीम पे ले जा सकते हैं, और एज अ कैपिटल हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उस AI के थ्रू क्या फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू। मुझे तो लगता है एज अ ट्रेनर ना मेरी जॉब चली जाएगी बहुत जल्दी। बट नहीं, दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग। आपने और रशिया ने दोनों ने, यू हैव एक्चुअली हाईलाइटेड समथिंग दैट इंशाल्लाह पीपल के साथ हम मिलकर वी विल डू अ सेशन इन द फ्यूचर। वी विल डेफिनेटली सी हाउ वी कैन टॉक अबाउट दिस। आई नो दैट लर्निंग एंड डेवलपमेंट के जो सेगमेंट्स हैं आपके डिफरेंट HR के अंदर, तो यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस, राइट? सो हाउ डू वी, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा इसमें। देखिए मेन इशू क्या है अदनान भाई, आपका जो आया था ना प्रॉब्लम, हम अभी तक एक्सपेंस वर्सेस इन्वेस्टमेंट कहीं फंसे में इसमें। जो मेजॉरिटी हमारा एक माइंडसेट है वो क्या है जी, एक्सपेंस है। ट्रेनिंग एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हम अभी तक उसे एज एक्सपेंस ट्रीट कर रहे होते हैं। बजट में हमारे पास जो होता है ना, कितना कंज्यूम हो गया, उसका ROI निकालना, वो करना, वो दूर की बात है, वो हम एज एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं। जब वो इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा तो कैपिटल बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बनेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा, चेंज आ रहा है, पेस स्लो है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये वाला सवाल आई वुड
ये जो अभी हमने 3 सवाल देखे हैं, एक तो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर एक बहुत डिटेल सवाल है, और फिर देन द अदर क्वेश्चन दैट उस्मान आल्सो हैड कि कल्चरल फिट कहाँ से लेकर आ सकते हैं रिक्रूटिंग प्रोसेसेस के अंदर. इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लव टू और add or have any sort of experience that you have that you'd like to share? Yes, I want to share one. Please, yes. जब हम AI को इस्तेमाल करते हैं किसी डिसीजन मेकिंग में, तो ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है जो उससे नियरेस्ट होती है, जो उसको अडेप्ट कर सके, जिसको प्रैक्टिस कर सके. बाकी चीज़ों को वो निगेट कर देते हैं. ये वही चीज़ है कि उनका 5th ऑप्शन सेलेक्ट किया गया, पहले 4 ऑप्शन नहीं सेलेक्ट किए गए. हाँ. इससे कि 5th वॉज द नियरेस्ट कि वो जिसको अडेप्ट करके जिस पे चल सकते थे. दिस इज़ वॉट हैपन्स व्हेन टेक्नोलॉजी shakes hand with the culture, and it happened with the cars as well, it happened with the aviation as well, it happened with the food as well, it happened with the computers as well, and now with the AI as well. कि शुरू में आपका इंट्रोडक्शन वहाँ पे होगा जहाँ पे उसको आप मीट कर सकते हैं, और ऐसा ऐसा करके आप रिफॉर्म करते हैं और नई चीज़ों को अडेप्ट करने लग जाते हैं, और फिर ऑप्शन बी ऑप्शन ए पे भी आ जाते हैं. लेकिन शुरू में आपका वो ऑप्शन हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कल्चर के अंदर आता है जो नियरेस्ट होता है और जिस पे अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज द प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन व्हिच आई एम शेयरिंग हियर. Yeah, this is exactly why we are having this session today. So we have the experts tell you कि इनके क्या solutions हैं. अब हम round number 2 पे जा रहे हैं. All right, and round number 2 is going to be a little bit more storytelling. All right, and we actually, and इसमें भी panel will be open. The floor is going to be open for discussion right after we're done with the 4 panelists. But beach mein, if there's any point that you guys want to do that directly is related to their question, do raise your hand, because I really want to have this conversation from your side as well. आपने देखा है बहुत multiple different perspectives एक ही problem में किस तरीके से different solutions create कर सकता है, and that's what we actually want to move forward with. All right, so Tanya, I'm going to actually start with you. Sure. All right, so we want to know that how helpful is AI for HR. I want to talk about decision making fatigue. MIT ने एक peer reviewed एक report निकाला है, alright, और उस report में कहते हैं कि आपकी brain activity minimize हो गई है chat GPT इस्तेमाल करने से. किसने ये Facebook पे देखा है, LinkedIn पे देखा है, एक वो brain का वो आया है और इतना सा हिस्सा brain का इस्तेमाल किया जा रहा है, right? And everybody is worried, oh, you know, मैं तो यूजुअली लोगों को कहती हूँ कि भाई यार ये तो वैसे भी लोग दिमाग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, why you getting so worried? But fact of the matter is इसमें एक सवाल आता है डिसीजन मेकिंग फटीग का. ये एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक है जो ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं. आई होप यू डोंट माइंड, राइट एट द एंड वी हैव सेवरल पीपल स्पीकिंग. हाँ, यस यस, अभी बिकॉज वी गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू राउंड नंबर 2, सो आई जस्ट वांटेड टू हैव अ लिटिल फोकस. डिसीजन मेकिंग फटीग के बारे में किसने सुना है, अपना हाथ उठा सकते हैं. डिसीजन मेकिंग फटीग, इट इज़ समथिंग दैट इज़ अफेक्टिंग एवरी वन ऑफ यू. मैं आपको बताऊँ डिसीजन मेकिंग फटीग क्या है. इट इज़ जब आप सुबह उठते हैं, आपके बच्चे चीख रहे हैं, उनके लिए आपने ब्रेकफास्ट बनाना है, आप बैठ के अपने ऑनलाइन चेक करें नोट्स की, यार मैंने बॉस को ये चीज़ देनी है, फिर आप गए गाड़ी के अंदर, और कराची की ट्रैफिक हम सबको पता है माशाल्लाह, राइट. सो उसके अंदर जो स्ट्रेस होती है, एवरी टाइम यू टेक अ डिसीजन, आपकी एक लिमिटेड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है पूरे दिन में. दैट्स वाई हम सबसे बुरे डिसीजंस रात में लेते हैं. हम सबसे बड़ा चॉकलेट केक खाते हैं रात में. हम सबसे ये दीज आर बैड डिसीजन मेकिंग, एंड दिस इज बिकॉज आपके विल पावर डाई होती है. मेरे लिए इन माई आईज दैट व्हाट AI हैज डन इज रिड्यूस्ड आवर डिसीजन मेकिंग, और वो फटीग कम हुई है. मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स, वो एक ही शर्ट पहन के जाते थे ताकि वो डिसीजन उनको ना लेना पड़े सुबह को. Exactly. तो in this case, like in 2025, how do you think this is affecting you guys, and उगिलवी में कैसा इसका impact आया है decision making fatigue के हवाले से? I think that's a very good question, because I think this stems from the time COVID took place. So when COVID took place, I think a lot of us suddenly didn't have to make so many decisions anymore. कि ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है, you would just get up, start working, or a lot of people didn't have work. So suddenly you had so much more time to invest in your well-being, in whatever things that you wanted to do. किसने खाना पकाना सीखा है कोविड में? Baking, for sure. A lot of people, yeah, yes. so I think one of the things, you know, आज कौन सा रूट लेना है, के बच्चों को क्या देना है, कपड़े क्या पहनने हैं, पेट्रोल भरवाना है, all of those things just suddenly negated. They weren't there anymore. So Yeah. it gave you a bigger space to enjoy and indulge in things that you actually wanted to do.
Same thing, I think right now what AI is doing, and especially in the creative space, on the advertising space, is making our mundane tasks much smaller, like wo automate ho gaye. So it's giving us much more time to do work on things that are more strategic, work on things that are more meaningful, and also creating space to हमारे नए Gen Z log hain, you know, a lot of our, like you said, 18 to 35, well, it has millennials like me also in it. But having said that, it frees up space for a lot more people to do things that they actually want to do, you know, talking about work-life balance. So उसमें आपको time मिलता है to do things that you want to do. I personally वो feel बहुत ज़रूरी है क्योंकि Yes. पाकिस्तान अनलाइक बाहर के मुल्क जहाँ डे के सेंटर्स ये सारे हर एक हाँ। कंपनी में होता है, जी। स्ट्रक्चर ही नहीं हुआ है आपकी ज़िंदगी के आसानी के लिए। Yeah. हम क्यों वाई डू वी कीप हाउस हेल्प? इट्स नॉट जस्ट अ Yeah. पोस्ट कॉलोनियल इशू, हमारे मुल्क ही नहीं स्ट्रक्चर हुआ है जिसमें वो Yeah. आप घर का काम कर सकते हैं या आप काम कर सकते हैं। यू कैन नॉट डू बोथ ऑफ Well, देम, one इट्स of the वेरी good things डिफिकल्ट। about Ogilvy is that since we are an MNC, so we do kind of look into these policies that kind of encompass the whole well-being for women, for mothers, even for every individual. That हमारे पास hybrid systems भी हैं, right? You can't expect people to be at work all the time, and COVID did that for आप us. आसानी देंगे तो हाँ, वो रिटर्न ऑन exactly. इन्वेस्टमेंट होगा आपके उसमें But काम के अंदर। but बिल्कुल coming back to the AI in HR and how AI has sort of simplified a lot of things for us as well. Me personally, being in HR, I felt like before, and I'm a millennial, I would be stuck doing a lot of operational things, which I personally do not like. Like I have I hate slight paperwork. I have I slight totally get you. ADHD as well. So I also like, you know, lose focus. So for me, I feel like the essence for me as a HR director is kind of managing and getting to know my key stakeholders, which Yeah. are employees and the senior management. I barely used to have time to do that. Now, because most of my tasks are automated, and for my team, which is Gen Z, उनके लिए भी time ज़्यादा है, so they can go enjoy what they want to do and get to know people on a personal level. So Yeah. coming back to the notion that you can't remove or replace the human element or human intelligence or human empathy part of that aspect, and AI doesn't have that for now. For now, it doesn't. So I think in that way, आगे it's been- जाके हस्बैंड्स और वाइफ्स बनेंगे ना हमारे। This is exactly so one of the things that our AI tool is able to do, that we've created HR assistants. तो जो basic tasks हैं उधर ही जाके लोग पूछें, so we don't have to be contacted for that on a daily basis. And then they've also created agents for me to help me personally as an HR director, how to handle sensitive issues. You know, in this day and age, everything with social media and everything, and you know, we don't want to offend anybody, and being more inclusive, you want to be very aware about these things, and that's why we have these agents that are helping us out in how to handle sensitive issues, what are the steps that we can take for such incidents, or even Like some an aid. policies. Yeah, it's an और aid. डिसीजन मेकिंग फटीग वैसी आपकी कम होनी आपकी शुरू कम हो हो जाती है जाती है, ऐसे वो में। आपको पहले It's ठक ठक overall- ठक ठक करके पूरा बता देता है कि But- बस हाँ sorry I'm go so ahead. sorry, yeah. हाँ. Actually, क्योंकि आपने यूथ के बारे में बात किया, आपने भी यूथ के बारे में Yeah, बात किया, yeah. I really एक सवाल आता है, ये मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए देखा है, Okay. यूथ की अटेंशन स्पैन कम है, मेरी खुद कम है, so I don't सबकी know. कम है, ओके राइट नाउ। Yeah. बहुत ये जो एक डर है लोगों का कि एक नया टेक्नोलॉजी आया है, वो हाँ. बूगी मैन बन जाता है टेक्नोलॉजी, Right, right, राइट, right. एंड यू जस्ट लाइक यू नो कि हाउ विल दिस इम्पैक्ट अस, ये जो अटेंशन स्पैन कम है, क्या ये Yeah. सिस्टम्स में काम कर सकते हैं जेन ज़ी? आई Yeah. डू फील पर्सनली, मेरा एक टेक है इसमें कि एवरी टाइम टेक्नोलॉजी चेंजेस हम भूल जाते हैं कि ह्यूमंस इवॉल्व, Absolutely. वी आर एवोल्यूशनरी क्रीचर्स, Yeah, उसके yeah. साथ साथ इवॉल्व करता है। Yeah. हम पहले हम पार्क में जाते थे बचपन में फ़ोन के Yeah. बगैर, Yes, absolutely. अब आप सोच सकते हैं अपने बच्चों को फ़ोन के बगैर कहीं भेजने? नहीं, not आप at all. इवॉल्व करते हैं इस टेक्नोलॉजी के Absolutely, साथ, yeah, राइट? yeah. सो व्हेन इट कम्स टू दिस क्वेश्चन ऑफ अटेंशन स्पैन एंड ये जो डिसीजन मेकिंग, छोटी छोटी जो चीज़ें दैट changes the way you are as a human, how do you think AI in your workspace has been affecting that? You know, in a creative space, once again, most people anyway have ADHD. On a serious note, you know, and because a creative is someone that is not like very 9 to 5 sort of person. They will work on their own time and space and their Bilkul. creativity. I'm sure you know about that, Same right? Yeah. But having said that, I feel, in my personal opinion,
even though that it has kind of reduced a lot of the task, and it's given us, जैसे कि आपने कहा 60 seconds में it'll give you a whole list of things that you can carry about, or a new engagement, initiative, etc. But I feel for the younger generation, I feel that it's kind of losing its critical thinking skills. Foreign जाएंगे, ठक ठक ठक, ये ChatGPT or our AI tool WPP Open will give us like, this is how you go about it, this is your caption, this is how you go about it. I think they're kind of losing their critical thinking skills. I do have a different anecdote to that. अभी Yeah. very recently जो मेरा team है ना, हाँ. मैंने अभी recently एक team hire की है 10 बच्चों की from IBA. Okay. And I've had to quit everybody. All the millennials, all the boomers had to leave my company, mostly because they were giving something completely different over here. So I'm so sorry, I'm just going to get back to that one. Yeah. So उसमें मैंने देखा है कि एक को मैंने प्रोजेक्ट दिया था, एक बहुत बड़ा मेरे क्लाइंट था, वाज अ बैंक, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स, एंड आई टोल्ड हिम कि ये एक बहुत बड़ा 12 साल का एक प्रोजेक्ट है. I couldn't come up with the answer. I took it to a consultant. They could not come up with it. A 19-year-old boy जो अभी अपने learner's license Yeah, ले so रहा I was going to add to gave that. me a solution जो मैं 2 सेकंड रुक गई थी, फिर मैंने उसके CEO को भेजा उस बैंक के प्रेसिडेंट के. तो प्रेसिडेंट से पूछा ये कौन था, ये किसने बनाया. तो उसको मैंने बताया कि 19 साल का बच्चा था, वो ChatGPT था, तो he was completely blown away with that. So like oh, ये भी हो सकता है इसके अंदर. But you know what, Zainab, that they are more equipped to use these tools because they grew up in that sort of generation. So we had our summer internship program this year. So we had a lot of interns coming in from various universities, IBA, we had NCA from Lahore, this, that, whatever. But what I also realized for these interns, just like we were saying, they were so hands-on in knowing how to use ChatGPT, and then we introduced them to our internal tools, how design tools, creative tools, strategic tools, etc. They were very easily adaptable, and they came up with like crazy ideas that our own designers could not kind of figure out. But because this is a new world. it's a and I new think world it's a very for exciting them. new world. It's absolutely, and Do you guys agree with that? It's a new exciting. It's exciting, like it's future. limitless, right? It's limitless what they can do. But again, adding on to, I think one of the ladies mentioned about universities having this. I think academia and institutions should realize that this is the future. Yeah. That anyone that's coming into the workspace or graduating, they should not shy away from this. This should be like inculcated. Like you cannot survive without a smartphone now. You can't survive without knowing बहुत AI अच्छा. before you hit the workplace. 'Cause This is very good news, by the way. Anybody who has this question कि क्या academia के अंदर AI सिखाया जा रहा है? Exactly. बहुत बड़े स्केल में सिखाया जा रहा है. Because- From our governor, जिसने अभी कुछ 1.2 मिलियन लोगों को सिखाया, to national ये क्या स्टेट बैंक जिन्होंने over a million लोग national financial literacy program का हिस्सा उन्होंने बनाए हुए हैं. इतने सारे जो programs हैं across पाकिस्तान ये हो रहा है. Right. Our youth is going to be very tech savvy, and I know Pakistan is going to have a great future, inshallah, Yeah, with this. inshallah, Inshallah, for क्योंकि green sure. मैं पहन कर आई हूँ हमारे Independence Day के लिए, तो कुछ Perfect. बोलना था हमारे. But Yeah. thank you so much, Thank you. Tania. So I want to actually हमारे थोड़ा सा लंबा हो गया था because it is something that I feel like it does impact a lot of people. But Yeah. a second thing, workplace reconfiguration. Am I going to lose my job? As an artist, I've lost my job already. Okay, like I used to paint for the army and they stopped calling me this year. Oh, Okay, so I felt like they probably got something or the other Probably. sorted out, and I did see it. You've got great paintings created by them, और उसके ऊपर आप थोड़ा सा हाथ पैर मारे हो पे आपका एक पेंटिंग बन गया. वो जो एक क्रिएटिविटी थी ना वो मर गई है. एंड दिस इज समथिंग, आप भी एक आर्टिस्ट है. वी हैव सो मेनी आर्टिस्ट इन आवर मिस एंड यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस एज वेल कि इफ आई कैन गो ऑनलाइन आई कैन टेल Canva to create an illustration Yeah. like this. For me it is a little scary. It is. ओके अभी मैंने रिसेंटली देखे है कि रिलीजियस वीडियोस बहुत आ रहे हैं कि हज़रत मूसा या हज़रत इब्राहिम वगैरह बन के लोग आके सेल्फीज़ के साथ कि अब मैंने ये किया, अब मैंने ये किया. एंड देयर सो रियलिस्टिक. स्टोरी टेलिंग बदल गई है हमारी, उसकी गेम ही बदल गई है. एंड आई फील लाइक मूवीज शूवीज भी बन जाती हैं. नाउ टेकिंग दिस इंटायर कन्वर्सेशन फॉरवर्ड, IBM just replaced 200 HR professionals with AI agents and automated 94% of its HR. ये डरने की बात है हम सब के लिए. Okay, क्योंकि everybody over here is from HR. All right. So now this is taking over job roles. It's causing people to panic. We're saying that human element की ज़रूरत है definitely. But question है कि क्या हमें वाकई में panic करना चाहिए? होता अब क्या है कि आपने गाड़ी HR इस्तेमाल person- करनी है बेसिकली रिक्रूटिंग के लिए. यस अच्छा अब होता है क्या एज HR पर्सन
सर हम रिक्रूटमेंट करते हैं सर, हम देख रहे होते हैं। अच्छा, हमने फिर क्या किया, फैंसी वो वर्ड्स भी आते हैं ना, अब आ गया टेक्निकल रिक्रूटर। पहले रिक्रूटर था, अब आ गया मोर उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टेक्निकल रिक्रूटर। तो बेटा ये देखो, ये कार है, ये खुद रिक्रूट करेगी, ज़रूरत नहीं है हमारी। देखिए, ये इज़ द नीड ऑफ द आर्ट टू अंडरस्टैंड कि अल्टीमेटली वी हैव टू चेंज, अदरवाइज वी विल बी चेंज्ड। सिंपल फार्मूला है ये। अच्छा, अब उसमें क्या है, जैसे मैंने बात की कि आई थिंक 15-20 ईयर्स अर्लियर जो है एक लीव कंट्रोल कार्ड हुआ करता था टू मेंटेन द लीव रिकॉर्ड ना, हाँ, कि वो जी पेपर्स पे है, वो लीव कंट्रोल कार्ड वो करना है, वो एक पूरी जॉब थी, दैट वाज अ कंप्लीट जॉब। A person was dedicated, assigned for that particular job. He will be receiving the applications from the department and just maintaining the leave control card. उसके बाद end में payroll में जाएगा, यार इसके इतने पैसे काट लो, इतना लेट था, ये था। अब क्या हुआ, सिंपल आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन, जॉब ख़त्म, हाँ, फिनिश। अब वो ये समझना पड़ेगा, ये एग्जैक्टली आपका जो पॉइंट है, अगर IBM सोच रहा है, FB फेसबुक कर रहा है, ऑफ कोर्स अल्टीमेटली हमारे पास भी उसकी हीट आएगी। वी हैव टू बी प्रिपेयर, किस तरह करना है, कैसे करना है। देखिए बात हारिस की, जॉब्स ख़त्म नहीं होती, ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। एग्जैक्टली। ट्रांसफॉर्मेशन आना पड़ेगा। पहले मेरे पास जो है वो लीव कंट्रोल कार्ड के लिए बनता था, अब मेरे पास एक एप्लीकेशन है जो उसको डील कर रहा है कि लीव उसमें कैसी लग रही है, लेट अराइवल क्या हो रहा है, किस तरह होगा, तमाम चीज़ें। तो आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉब है, उसके लिए वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट टाइम, और होना तो है। मैं अगर कहूँ जनाब कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो वो शायद वो स्वीट कहते हैं ना, वो कोटेड पिल्स होंगी कि नहीं जी होना है, ये अल्टीमेटली वक्त आएगा और चेंज होना है। यस, एंड अगर अभी एक रीसेंट न्यूज़ है, मार्क जकरबर्ग ने कुछ लोग हायर किए ओपन AI से, एंड ही ऑफर्ड 1.5 बिलियन इन सैलरी फॉर 6 years फॉर ईच वन ऑफ देम। सो आपको देख लें कि एक्चुअली नया जॉब किधर होगा, राइट? So it's just time for us to upskill as well. It is time for HR to get efficient as well. Exactly. And I think we are on the cusp of a revolution. Exactly. अगर देखा जाए, yes, बिल्कुल ऐसे। and that I'm really looking forward to see. But there are some jobs that will never be affected. Firefighting, for example. Okay. Plumber. एक मिनट, Even फायर politics. फाइटिंग के लिए ड्रोन्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होना शुरू हो गई है ना, अब ज़रूरत नहीं है आपको। ड्रोन्स ने उड़ना है, उन्होंने जाके जाना है, बताना है। आई थिंक किसी ने देखी होगी वीडियोस वगैरह, वो स्टार्ट हो गया है ये। देखिए रिप्लेसमेंट होना है, वो रिप्लेस होगा, कैसे होगा, मे बी कोई नई चीज़ आ जाएगी, स्प्रिंकल्स का हो जाएगा, मे बी कुछ और हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, you had something to say, I think. So how many of you know who Reid Hoffman is? So Hoffman, he yeah. was, one of the founders of LinkedIn, and he is someone that predicted in 1997 that we are going to have a wave of social networks taking over the world at some point, and humans will be like literally glued to them, and this is exactly what happened. But he's also predicted for AI in the next 9 to 10 years, that the concept of 9 to 5 jobs will be becoming 50%, 60, 70% obsolete. Exactly. So having said that, now if 50 to 60% of this concept of 9 to 5 jobs or 9 to 6 jobs is not going to exist anymore, so what are people doing? Again, coming back to, they have more free time to do things that they want to do, but you will have to upskill yourself enough to create that space to be hired as well. So coming back to the point, this is something that's going to happen very, very, very soon. Soon, exactly. Yeah. So we need to get up on that immediately. Basically, this is a train that is going, and we need to jump. We need to stop talking about it and start doing something. Start doing, exactly. Yeah. बिल्कुल, Haris. My question to everybody is कि इंसान सबसे अच्छा क्या करता है? पैनिक। इतना अच्छा पैनिक कोई और स्पीशी इस दुनिया में नहीं कर सकती जितना अच्छा इंसान करता है। बट द प्रॉब्लम इज कि वो हम ना पैनिक करते रहते हैं, हम करते कुछ नहीं है उस बारे में, ठीक है ना। सो वी आर सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना। वी हायर ड्राइवर्स कि हमें ड्राइव ना करना पड़े, लेकिन फिर गाड़ी में हम करते क्या हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, ठीक है ना। सो आप देखेंगे ट्रैफिक में एक बंदा आएगा आपके पास से, यू नो, रश ड्राइव करते हुए कि भाई जल्दी पहुंचना है, सेविंग ऑन टाइम, और घर जाके लेट के क्या करेगा, रील्स देखेगा, टॉक शो देखना, ठीक है ना। तो रील्स देखनी है उसने, Doom scrolling. Yes. so that's how, you know, we have to take responsibility. हमने पैनिक तो कर लिया, ठीक है, but we have to work on ourselves, ठीक है, we have to upskill ourselves,
एंड हम एजुकेशन पे बात कर रहे थे, बट माई क्वेश्चन इज 2035 की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ की कोई अहमियत होगी? आई मीन आज ग्लोबली EY आपको हायर कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंटरमीडिएट हैं, आएँ टेस्ट पास करें एंड गेट हायर्ड. एंड मुझे ये नहीं पता था, जो भी आपने एग्जांपल दी मार्क जुकरबर्ग की हायरिंग वाली, आई वुड डेफिनेटली वुड गो बैक एंड चेक देयर प्रोफाइल्स कि उन्होंने पढ़ा क्या है एग्जैक्टली, ठीक है ना. बिकॉज आज के दौर में यू हैव सो मच अवेलेबल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ट्रेंड जो है ना वो क्रिंज कंटेंट ही कर रहा है, स्पेशली हमारे पाकिस्तान के अंदर. और हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. आई वॉज रीडिंग अ बुक एंड इट क्लियरली सेड दैट यू नो इंसान whenever you make something successful, whenever you achieve something, you say ये मैंने किया है. Yeah. And when you fail, you look around to ये put the इसने blame किया on कभी. कि यार ये इसकी वजह से हुआ, मैं पीछे इसलिए रह गया क्योंकि मेरा बॉस अच्छा नहीं था. You getting my point? मैं इसलिए पीछे रह गया क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे ट्रेनिंग पर नहीं भेजा. तो चलिए ऑर्गेनाइजेशन आपको भेज भी देती, कितनी ट्रेनिंग डेज पे भेजती? 1, 2, 3. इज इट सफिशिएंट? यू हैव मच मोर डेटा अवेलेबल एंड फ्री ऑफ कॉस्ट. आज के इस सेशन के अंदर आई बिलीव दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? किसी ने कुछ पे तो नहीं किया ना. तो यहाँ तो लाइन लगी हुई होनी चाहिए थी लोगों को बिठाने के लिए, बट वी डोंट सीरियसली पे अटेंशन टू दीज थिंग्स. ठीक है. आपने और बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया. अभी रिसेंटली मैंने एक शो किया है, उस पर मैं एक टिकटॉकर को मैंने बुलाया जिसके 3 मिलियन फॉलोअर्स थे इंटरनेशनली, और उसने मुझे एक अजीब चीज़ बोली है. कहती है मेरे पास 6 सिम्स हैं, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, ये वो कह रहा. और जब मैं सिम बदलती हूँ, टिकटॉक का एल्गोरिदम बदलता है, जो उस पर कंटेंट आता है. कहती है एक ही मुल्क में बार बार नाचने वाले वीडियोस और ये सारी स्टूपिड कंटेंट पाकिस्तान में बार बार आता है. कहती है कि मैंने लगाना छोड़ दिया वो सिम क्योंकि मुझे पता है ब्रेन रॉट कंटेंट मिलेगा, यू नो. एंड दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स, क्योंकि हम गालियाँ तो दे टिकटॉक को, मगर वो एक्चुअली हमारी अपनी हरकतें, हमारी अपनी बिहेवियर है. ये जो आपने अभी पॉइंट किया कि या वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर. या सो रिसोर्सेज की शॉर्टेजेस नहीं है, ठीक है ना. तो ब्लेम ना Surplus करें है, चीज़ों को, surplus. हर चीज़ अवेलेबल है, जस्ट टेक ओनरशिप ऑफ इट. ठीक है ना. यहाँ तक एडवांसमेंट आ चुकी है कि जब आप चैट GPT अक्सर लॉग इन करते हैं तो रोबोट आपसे पूछता है कि आप रोबोट तो नहीं है, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन इट. ठीक है ना. सो गोइंग फॉरवर्ड क्या होने वाला है, गॉड नोज ओनली. यस. एंड अभी आपने जो बात की है, आई वांट टू एक्चुअली कम डाउन टू अ क्वेश्चन एंड आई वांटेड टू आस्क यू ओनली हारिस अबाउट दिस. सो हमें ये तो पता है एम्पैथी और क्रिएटिविटी इज़ अ वेरी ह्यूमन एक्सपीरियंस, राइट? एंड एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर जब वो हो जाएगा तो फिर सीन ऑफ हो जाएगा सबका बैठे बैठे. बट इट्स इंपॉर्टेंट टू अपस्किल आवरसेल्व्स फॉर दैट पॉइंट, राइट? नाउ वी ऑल्सो सीन AI बायस हैपन, जो अभी पिछले राउंड में हमने डिस्कस किया, एंड इट्स अ मच मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम देन वी थिंक इट इज़. ऑलराइट, क्योंकि अगर आपका AI बायस्ड हो, आपके पास इन्फॉर्मेशन भी बायस्ड हो. मैं वायलेंस प्रिवेंशन पे काम करती हूँ, वुमेन्स राइट्स पे. अभी मैंने ये 2 रिपोर्ट्स निकाले थे, मुझे 2 दफ़ा पढ़ना पड़ा था कि क्या लिखा है इसके अंदर. ये कि पाकिस्तान में कि पाकिस्तान इज़ नंबर 6 इन द सेफेस्ट कंट्रीज फॉर वुमेन लिखा. मैंने कहा क्या हो गया इसको, लेकिन ये पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा है. सो आई हैड टू गो बैक इन, वर्ल्ड बैंक की चीज़ें निकाले एंड देन आई पुट इट. सो उसका आंसर है कि ओह यस, द करेक्ट इन्फॉर्मेशन इज दिस. एंड there I got like, oh, this is, I feel like I have an intern over here, right? So अब ये जो bias है, these biases obviously हमने ये determine की human biases से हुई है, original training data से हुई है. Now this is a huge problem in companies जिनके पास एक inclusive staff है. मैं क्यों आपके पास मैंने ये सवाल पूछा है, क्योंकि again you're a bank has a huge focus on inclusivity, okay, all over जो financial आपके उसमें. So आपकी जो कंप्लाइंस विद कन्वेंशंस, GSP प्लस, ESG पॉलिसीज, DI स्टैंडर्ड्स, बैंकिंग ऑन इक्वालिटी पॉलिसी, हाउ डू यू टैकल दिस? हमने पूछा तो था अभी थोड़ा सा राउंड 1 में, बट आई वांट टू हियर अ केस स्टडी फ्रॉम यू, एनी एक्सपीरियंस. सो हियर आई विल स्टार्ट फ्रॉम, उस्मान ने बड़ी अच्छी एक बात कही थी, ठीक है ना. 5 कैंडिडेट्स, उस्मान आप ही नहीं दी थी ना, 5 कैंडिडेट्स ये थे. तो इसमें आपको क्या लगता है 5th वाला क्यों सेलेक्ट हुआ था? कल्चरल फिट. आई थिंक दे वर बायस्ड. दाढ़ी होनी चाहिए, टोपी लगी हुई है, ठीक है ना. आई मीन नो ऑफेंस टू इट, ऐसा नहीं है, बट आई बिलीव जब उन्होंने 5 कैंडिडेट से मिले तो उन्होंने कहा यार सारे ऐसे ही हैं, इसको भी रख लो. दे वर बायस्ड. सो बायस को निकालना ह्यूमन से ये बहुत मुश्किल है, ठीक है ना. इंसान के अंदर और कुछ बचेगा ही नहीं, राइट? सो आप हायरिंग के ऊपर देखें, पर्ची सिस्टम के ऊपर हम एक अरसे से बात किए जा रहे हैं, रेफरल हायरिंग के ऊपर हम एक अरसे से बात किए जा रहे हैं, बट नथिंग हैपन्स एक्चुअली बिकॉज दैट बायस
is something stuck inside of us, and that's something a default modus operandi of human being. That's, I believe. I'll share an example with you. Amazon started working on an AI-based recruitment software. Yeah. ठीक है, in 2014. अच्छा, हम अभी हम चैट जीपीटी क्योंकि नवंबर 2022 में आए ना, तो हमें अभी एआई की थोड़ी सी ना ज़्यादा समझ आई है, बात करना शुरू किया, बट ये बहुत पहले से काम हो रहा है. सो 2014 के अंदर जब उन्होंने ये काम शुरू किया एंड उन्होंने ये देखा कि कैंडिडेट्स उससे ऑटोमेटिकली फ़िल्टर होकर आ रहे हैं, एंड देन लाइक वाह, क्या चीज़ बना दी हमने, ठीक है ना. इवेंचुअली व्हाट हैपेंस, इट वाज बायस्ड. जो डेटा सेट उसको फीड किया गया था या जिससे वो ट्रेन हुआ था, इवेंचुअली सिस्टम ने ये देखना शुरू कर दिया कि जहाँ पे विमेन लिखा हुआ है वो प्रोफाइल नीचे आ जाती थी और जो दूसरी होती थी वो ऊपर आ जाती थी, ठीक है. इवन अगर किसी ने विमेन कॉलेज से पढ़ा है तो वो कॉलेज नहीं देख रहा था, वो विमेन देख रहा था, एंड दैट वाज समथिंग उसको साइड कर रहा था, ठीक है ना, पुटिंग इन नॉट प्रिफरेबल लिस्ट. एंड आफ्टर थरली trying to fix all these things, they couldn't, and they shelved it in 2015, right? So coming back today, so let's say अगर आज बहुत सारी countries हैं, बहुत सारी अच्छी बड़ी companies हैं जो global standard के ऊपर कर रही हैं उसको use. Imagine कि आज अगर हम उसको launch करते हैं तो उसका solution क्या हो सकता है? हाँ. Solution ये हो सकता है कि जब आप उस डेडिकेटेड AI सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो जो टीम आपने चुननी है, इट हैज़ टू बी डाइवर्स एंड इंक्लूसिव. 4 मर्द आपने कमरे में नहीं बिठा देने कि वो बैठ के जो है वो उसको बनाते हैं. देयर हैज़ टू बी फीमेल representation, there has to be transgenders representation, there has to be PWDs inclusion over there, and many more. हर एस्पेक्ट जो कि एक इंसानियत को कवर करता है वो वहाँ होना चाहिए. And then only you can make an inclusive AI system. Yeah. इसके बगैर नहीं हो सकता, ठीक है. Even if all women start, you know, preparing it, तो वो भी बहुत सारी perspectives उसके नहीं cover कर पाएंगे. So for looking at things from different perspective, you need to have more inclusive team who's building that, ठीक है. Second would be the feeding of data. So let's say आज हम किसी भी कंपनी को उठा लेते हैं और हम डेटा को फीड करवा रहे हैं अभी AI को, और अगर हमने पिछले 3 साल की हायरिंग का डेटा उठाकर हमने उसको फीड किया है, और अगर पिछले 3 सालों में आपने 100 कैंडिडेट्स हायर किए और उसमें से 90 आर men, so what do you think is going to be the result of AI software? It's going to Skew towards men, of course. definitely, ठीक है ना. एंड अगर आपने मैं नाम नहीं लूँगा, बट अगर आपने सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ से हायरिंग की है, सो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन, राइट. एंड अगर आपने कभी इंक्लूजन या PWDs की हायरिंग नहीं की, अगर आपका डेटा सेट ही नहीं है, ठीक है, उस डेटा सेट के अंदर वो उसकी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है किसी डेटा की, एंड यू आर ट्रेनिंग AI विद दैट डेटा, सो इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू आर गोइंग टू गेट. सो द सोल्यूशन इज दैट यू हैव टू फीड an inclusive data which covers all aspects of training of AI. अगर आपकी organization का जो data है वो उतना mature नहीं है, so then you need to bring experts on table who can evaluate and then, you know, formalize and finalize that data before you feed it to AI for training purposes. ये जो जॉब आपने बोला था, now we will need ethical coordinators. Yeah. Alright, and ये हमारे हैं होते कुछ MNCs के अंदर, मैंने देखे कि ethics के committees बनी भी होती हैं, but this is not a thing that you see in most companies in Pakistan. And अब ज़रूरत पड़ गई, अब it's a need of the hour, because without that, this is like a truck that's going to run over you if you're not watching carefully. Just imagine कि शायद कोई एक रेगुलेटर भी होगा पाकिस्तान में, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, there is a regulator who is keeping check and balance on it. So I look forward to having a regulator also. और हो सकता है कि वो कोई एक कंपनी हम ही में से कोई बनाए. AI regulatory company, what an interesting idea. I think इस कमरे में से कोई ना कोई बना कर निकलेगा. So keep us in mind. Like will be very useful. Yeah. So the next point would be that once you've developed an AI and you've trained it properly, do not just let it do or, you know, perform actions itself. There has to be a human on it who oversees, who monitors,
who sort of fine-tunes it, all who of that. proofreads the results, ठीक है ना, and audits it and ensures the regulatory things are being complied. Like there are a lot of things that we do in our life that are done through technology, but we always oversee it. Yeah. We always give a final check to it, right? So do not, after plugging in, just do not imagine or assume that, you know, this is going to be now working on its own, right? So you have to keep a balance on it. And once you are satisfied, then it can do its work. That's Yeah, how it is. bilkul, and thank you so much, Haris. And with that, I'm going to move to the other Haris right now of tonight. So, abhi jo humne baat ki hai, we've gone over and over the human touch in it, the ethics about it, all of that. One of the biggest problems we have is people are not like adapting it really. They're like, अच्छा ठीक है इसको चला दो आगे इस्तेमाल करो, but to truly integrate it in your system. Bill Gates ने एक किताब लिखी थी 2001 में. ये बड़ी एक अजीब चीज़ है कि वो किताब अब रेलिवेंट है. वो उसने उस वक्त बोला था सोशल मीडिया, आईटी, ये सारे आपकी ज़िंदगी की इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होगा. अगर नहीं होगा तो फिर यू विल बी आउट ऑफ दैट इकोनॉमी. अब वो आपका चॉइस है, आपने उस इकोनॉमी में रहना है या नहीं रहना है. आई फाइंड इट अमेजिंग कि 2001 में उसने वो किताब लिख ली थी. मे बी दैट्स व्हाई इज अ बिलियनियर टुडे राइट नाउ. सो बट I want to talk about adaptation, right? So companies that have taken time to adapt to new technologies, who have not taken time to adapt, have famously gotten bankrupt. मेरे दिमाग में Nokia आता है, मेरे दिमाग में BlackBerry आता है. इस तरह के बहुत सारे कंपनीज होंगे, सबके दिमाग में आएंगे जो दे गो आउट. बल्कि आप लोग भी काफ़ी सारे कंपनीज में काम कर चुके होंगे जहाँ आपने देखा है कि ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, राइट? और उसकी वजह से यू प्रॉबेबली लेफ्ट द कंपनी, एंड व्हेन मेनी पीपल लीव द कंपनी व्हाट हैपेंस, बंद हो जाती है. It shuts down. So this is so important to adapt to new technology. What are your views? Should companies throw caution to the wind and jump headfirst into AI, ASI, AGI? Yeah. Should we take like Haris's point of view that you need somebody monitoring? It's all about preparing a marination or marinating the workforce to adopt and to then adapt. I like the towards word it. marinating. Yeah. Because what they do is they directly jump into it without knowing the nature of the beast. So first you have to tame yourself that what sort of pet you are getting in. Yeah. Because that pet will learn with you, your behavior, your decisions. And that decision what Haris was talking about, कि वो decisions ही आगे जाके multiple effect create करते हैं. Yeah. What we do is कि companies के अंदर एक learning system होगा जिसके अंदर हमने भी ये चीज़ practice कर रहे हैं कि बिफोर गेटिंग इनटू HRIS विद AI ड्रिवन मॉड्यूल्स हम अपने वर्कफोर्स को उस AI की जो डिसीजन मेकिंग है उसके हिसाब से ट्रेन कर रहे हैं, उनके माइंडसेट को प्रिपेयर कर रहे हैं कि इस डिसीजन को एक्सेप्ट करना होगा बिकॉज ये इस पैरामीटर्स के ऊपर आ रहा है. ये पहले हमने नहीं किया डिफेंसिव तरीके से, और इसलिए कि जैसे ही वो आएगा वो कहेंगे जब इस AI को करने के लिए हमें एक बंदा चाहिए जो AI को समझे, तो क्यों ना हम पहले उनको समझाएं और फिर AI को लेकर आएँ. It is the marination So of preempting. Yeah, preempting everything. It is something जिसको आपको अपने आप को उसके मुताबिक ढालना है और फिर उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, तब वो आपको बेनिफिट देती है. एंड व्हाट वी आर डूइंग एट द मोमेंट कि हमारे जो डिफरेंट वर्टिकल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसके अंदर हमने सेवरल चेंज एजेंट्स इसके लिए बनाए हैं जो ट्रेन कर रहे हैं, जो लोगों को बता रहे हैं कि हाउ AI वर्क्स एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग दे विल डू, व्हाट सॉर्ट ऑफ फोरकास्टिंग इट विल गिव यू, how global perspective is doing and data is adding into the AI, and how an algorithm tells you what to do and how to do it then. कि अब बता तो दिया, अब करो कैसे हो, उसके मुताबिक कर रहे हैं. And then in later phase we will engage some AI tools in our HRIS which will help us to do the futuristic forecasting, the tunnel development and the learning and development. और जब आपके लोग developed होंगे तो उसको adapt करने में उनको ज़्यादा strategy, planning, war. Yeah. Basically, it's a battle. At the end of the day, when you go out and you work, it's a battle. And how you prepare really makes a huge difference. This is very interesting to hear this because there's so many human elements of AI that we have discussed today. मैं सेल्फ डिफेंस में जब सिखाती हूँ ना लोगों को, सेल्फ डिफेंस एक पूरा एक इदारा है जिस पे मैं काम करती हूँ, उस पर हम ये लोगों को सिखाते हैं कि यार उस वक्त किसी को पंच मारने से कुछ नहीं होगा. पहले से आप देखिए कि वो कहाँ से आ रहे हैं, रैकी करें ना थोड़ा सा, वो किस बिहेवियर के साथ आ रहा है, वो कितना बड़ा है, वो कितना स्ट्रांग है.
आप ऐसे ही अंदर छलांग मार दी, आप 4 फुट की, वो 6 फुट का, उसमें तो वैसे ही धो देना है. ओके, सो आई टेल पीपल यू प्रिपेयर, यू प्रीएम्प्ट. ओके, सो ये जिस तरीके से आपने उसको डिस्क्राइब किया, यू ऑल्सो गिव इट अ वेरी नाइस ह्यूमन फ्लरिश टू इट. कि आपने जिस तरीके से आप अपने लोगों को प्रिपेयर करेंगे ना अपने सिस्टम्स के लिए वगैरह, इनको भी प्रिपेयर करें, अडेप्ट करने, आई थिंक इंटीग्रेट करने का बहुत बड़ा हिस्सा ये है. पर अपने अपनी एक एक जिंदगी का एक एक हिस्से के अंदर लेकर आना, जैसे बिल गेट्स का घर है ज़नाडू 2.0, आपने देखा है कि वो बस बोलता हो हर चीज़ आके पीछे से स्टार्ट्स मूविंग ऑन वॉइस कंट्रोल एंड कमांड. इट्स अ ड्रीम. बट जिस मुल्क के अंदर लोड शेडिंग होती है ना, तो आप सोचिए इसके बारे में, तो आप उसके बारे में सोचते कि वो हाउ इज गुड एंड बट इतनी हैवी इंटीग्रेशन, इज इट गुड फॉर अस? यस, इसलिए कि हमने जो चीज़ें आगे देखनी है ना, वो हमने ग्रेटर काम करना है जो हम आज कर रहे हैं. उसके लिए हमारी कैपेसिटीज़ को, जहाँ पे हम अभी इंगेज्ड हैं इंटेलेक्चुअली, जहाँ पे हम इमोशनली इंगेज्ड हैं, वहाँ से हमें आपको डिटैच करना पड़ेगा टू री अटैच टू समथिंग न्यू. हमने क्या किया ऑर्गेनाइजेशन और प्रैक्टिकल सिनारियो में ये किया कि हमने स्मार्ट टीम्स डेवलप की हैं इस तरह से. स्मार्ट टीम्स फॉर एग्जांपल, हमारे जो ग्रुप ऑफिस है उसके अंदर सिर्फ 2 लोग हैं, 14 कंपनियां देखते हैं. वी आर टेकिंग हैवी वेट एड फ्रॉम AI, इसलिए कि हमने सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई किया है. हाँ. हमने देखा है कि मुख्तलिफ डिसीजन मेकिंग जो हमें करने के लिए लोग चाहिए होते थे, डेटा के लिए, इंगेजमेंट के लिए, सब लोगों के लिए, हाउ दे विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सम अदर जॉब्स, और हम किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी के जरिए उसको एंटरटेन करें. तो आप A/B टेस्टिंग लिटरली आप इसके ऊपर कर रहे हैं. Yes, काइंड ऑफ, we are yeah, this is hands-on, very yeah. interesting. So A/B testing is something that you can do. You can put 2 simulations and you can see के इस environment में इसमें कौन क्या सा होता है, बेहतर इसमें क्या काम होता कर रहा है. है. And ऐसे. it's very important because R&D is a very rare thing in Pakistan, but beautiful conversations all round. Round 1 and round 2. But before we close this and we open the entire panel for questions, I want to do a lightning round with you guys. So are we in for the lightning round? All right, this is a rapid fire. So पहले हारिस हुसैन आपसे ये सवाल पर पूछना चाहती हूँ. What's the biggest lie companies tell themselves about using AI in HR? Using a plain human resource management system. Okay, ठीक है. Now, Haris, I've got another question for you. Would you trust an AI to fire someone without human review? No way. No way. No way. You need a human over there, Of right? course. But now I'm going to go to Haris Tabassum. What's one area where AI should never be allowed to touch HR? The spiritual part. The spiritual part. I like that. Yes. And now, Ali, I want to ask you this question. Does AI help remove bias or just hide it behind code? I think hide behind code. Hide it behind Bias code? तो है exactly. इसके अंदर भी एक इंसान है अंदर. Exactly है. Right? So yeah. एक All छोटी right. सांस छुपी हुई है इसके अंदर भी. है ना? Yes. और Exactly. बनाए किसने? पुप्पी ने बनाए. All right, Tanya, what would your AI horror story, AI HR horror story headline be in 2030? AI marks the entire office as absent because it didn't recognize Eid holidays. Wow. Okay, that I didn't think of. Ali, back to you. If your workplace AI was a person, would your employees trust them? Never. 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 Obviously. Do you Never, guys agree with ever. that? Yeah. वो खैर करते HR को भी नहीं है. नहीं exactly trust नहीं. We have a totally different issue here. So like, Haris, back to you, Haris Tabassum. So what's the biggest ethical red flag you've seen in AI-powered HR tool? Target orientation Target orientation. minus human factor. Okay, all right. So again, we're getting this again and again. We need humans, right? And the last one, and this one is for Tanya. Which part of HR will be completely unrecognizable in 5 years, and why? I would say recruitment. Recruitment? Right, just like we saw this गाड़ी video recruit right now. करी है ना? गाड़ियाँ कर रही हैं already. So I think in 5 years, I don't think we will need humans to be recruiting. Absolutely. And by then, I think we will have some sort of human element. Pehle se if we feed enough into it, कि this is what I'm looking for, this is the culture fit, these are my so-called biasness. I think we don't need the talent acquisition team as such anymore. Anybody in talent acquisition here right now? Yeah, you're like, oh my God, ये क्या बातें हो रही हैं Please इधर हमारे upgrade साथ? your skill. But yeah, this is your point to move. Whistleblowing for them. Whistleblowing, but I think this is like a wake-up call. Wake-up call. For of sorts for all of us, not just recruitment. Okay, because as I said, IBM ने 94% HR को replace कर दिया. कर दिया. And that's a very scary thing because IT industries around the world globally follow
IBM. And when the IT industry, जो कि पाकिस्तान की सबसे अच्छे performing industries में से start doing this, we're going to have a very big problem. And that's what we need to be prepared for. Thank you so much. A big round of applause for our amazing panelists. Thank you so much, all of you, for being over here and being part of this session, because I feel it is collective intelligence, जिस तरीके से AI के अंदर है, that's going to help us move forward. So I would love to open the panel over here. आपके सवाल, आपके points of information, कुछ आप भी add करना चाहते हैं audience में से, I would love to have that. We'll start with the lady in the front. Mic इधर मिल सकती please. आपका number 2 पर मैं अभी आपको करती हूँ. Yes. So basically, my name's Khala. We've talked about the, bigger aspects of AI, but I think we haven't touched the disadvantages that we've got at a smaller scale. For example, right now, almost everybody has access to ChatGPT. अब हम अगर यहाँ की इंडस्ट्रीज़ देखते हैं, मतलब कराची में बहुत सारी सेठिया कंपनीज हैं, और a lot of them don't follow the generic HR policies or the rules and regulations. जिस तरह world wide, let's say hours पे restrictions हैं, some places say कि 6 hours working hours होने चाहिए, some say 4 होने चाहिए. हमारे यहाँ we expect employees to be available 8 hours, 9 hours, 10 hours. I've done 12-hour shifts. रात को भी available होना होता है. But now, because we are hiring a lot more Gen Z staff, let's say हम उनको अपने culture में fit in करने की कोशिश करते हैं. We tell them, we need you to come in at night, या we need you to do something at night, and they send us ChatGPT से search करके एक पूरा passage कि जी this is unethical, this is not allowed, we're not going to do this. How do we deal with Excellent. these things? I love that. एक्चुअली जो अभी आपने बात की है ना, इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी कि जब आपकी जनरेशन टू जनरेशन आपकी बिहेवियर्स बिल्कुल डिफरेंट है. आपके माँ बाप के बिहेवियर्स फ़र्क हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो पार्टीशन के टाइम से गुजरे हैं तो उनके बिहेवियर्स बिल्कुल फ़र्क है. हमारे एज मिलेनियल्स हमने कितने सारे टॉक्सिक साइकिल्स को ब्रेक किए हैं, राइट, और उसकी वजह से जेन ज़ी आपकी इतनी खुलकर सामने आके बात करती है, राइट. सो जेन ज़ी का बहुत लोग जो कह रहे थे ना कि टू इन्फ्लुएंस बाई AI, टू इन्फ्लुएंस बाई टेक एंड देयर अटेंशन स्पैन कम है. एक्चुअली ये जो अब नया दुनिया है ना, ये इनके लिए शेप हुआ हुआ है. AI हैज़ एक्चुअली क्रिएटेड द इंफ्रास्ट्रक्चर. आपको एक छोटे से एग्जांपल देती हूँ. एक एंड आई टेल यू हाउ इट कनेक्ट्स विद दिस. सिंध के अंदर एक विलेज है विच इज़ 2 hours नॉर्थ ऑफ थर, ओके, इनसाइड थर, सॉरी, 2 hours नॉर्थ ऑफ मिठी. अगर कोई मिठी इधर गया हुआ है तो उन्होंने देखा है, तो मिठी उस विलेज में 2/3 ऑफ द पीपल आर डिसेबल्ड, क्योंकि उनके आयोडीन बहुत ज़्यादा है पानी में. सो अब जब उस विलेज में जाते हैं और 2/3 ऑफ द पीपल आर डिसेबल्ड, पूरा का पूरा विलेज उनके हिसाब से बना हुआ है. तो मैं जो डिसेबल्ड नहीं थी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था उधर नेविगेट करना. चेकोस्लोवाकिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जब लोग इतने सारे लोग ब्लाइंड हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, चेकोस्लोवाकिया पर जाए हर जगह ब्रेल है, दीवारों पे, ज़मीन पे, तो एक अंधा इंसान आराम से घूम सकता है उधर. सो आप ह्यूमंस डेवलप द वर्ल्ड अराउंड देमसेल्व्स. अभी आपने वो क्या बात की थी कि AI हमारी वर्क लाइफ बैलेंस को बेहतर करिए. सो नाउ लेस आवर्स and Gen Z knows that. So they're calling us out. And now this is where we've coming, it's a generational gap. Anybody else here has anything to say? Yes. I have a And then point on that. Like I mentioned earlier, we had all these interns coming in. My associates are Gen Zs. I think in a way that's great. They're setting boundaries. They're bringing in that space that you can't cross that. And they want to work on their work-life balance. So I think in a way, look at it from that point, that what they're doing is amazing. And I think Pakistan and just I think few other countries in the world are the only ones that work on a Saturday. Like 9 to लोग 3 दिन पे जा रहे हैं, 4 दिन पे जा रहे हैं, hybrid पे जा रहे हैं, और यहाँ पे हम Saturdays पे भी लोगों को बुला रहे हैं. I mean, so in a way, if they're setting those boundaries or whatever they're doing, ChatGPT, whatever tools they're using, I think it's great, and we should, like Zainab said, kind of work around that. और हमारे लिए भी अच्छी बात है ना ये. Think of it from that perspective. छुट्टी है जल्दी. That's all. We've got another question. And before the question, Haris actually has something that he wanted to. Yeah. की बात की, देखिए AI जो है वो सर्च करता है, रिसर्च नहीं करता.
AI जो है वो इनोवेटिव नहीं है, उसके पास जो चीज़ें इंसानों ने उसको दी हैं वो वही इस्तेमाल करके आपको रीडिज़ाइन करके आपको दे रहा है, वो कोई नई चीज़ आपको नहीं करके दे रहा। अब ये इंसानों का काम है कि उन्होंने रिसर्च करनी है, उन्होंने नए मॉडल्स बनाने हैं, नई चीज़ों पे जाना है, एक्सप्लोरेशन उन्होंने करनी है। जैसे मैंने पहले बात की कि HR को आप कैपिटल बनाएं, जब आप HR को कैपिटल बनाएंगे तो वो इनोवेटिव होगा, वो नई चीज़ों से सोचेगा, वो AI को कम्पीट करने की बात करेगा। नाउ इट्स अ चैलेंज फॉर HR हाउ दे शुड कम्पीट AI टू सस्टेन देयर जॉब एंड रिटेन देयर जॉब। ठीक है, अब ऑब्वियसली वी आर कमिंग टू अ क्लोज ऑन दिस सेशन एंड अभी पिछले सवाल का जवाब भी आपका था एंड देन वी आर गोइंग टू कम बैक टू योर्स। सो जो चेंज होता है वो एक प्रोसेस होता है, इट्स अ लीनियर थिंग, स्टेप बाय स्टेप होता है, क्योंकि अगर आप एकदम से कुछ कर देते हैं तो लोग उसको समझ नहीं पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सो सोचें कि 1980s में व्हेन आवर यू नो फैमिलीज या जेन कौन सी थी जेन उस वक्त, जेन एक्स थी, जेन वाई थी। सो अगर वो जाकर अपने सेठ को, उस वक्त सेठ होता था, मालिक होता था उस वक्त सेठ, ठीक है ना, अब एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, अब एम्प्लॉयर्स हैं, एंड अब एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का एक रिलेशनशिप वही वाला है, इट्स नॉट बियॉन्ड दैट। सो आप सोचेंगे उस वक्त 1980s में अगर जाकर एक शख्स अपने बॉस से या अपने एम्प्लॉयर से कहता कि जी मुझे घर से काम करने दें, सो वो पॉसिबल नहीं था, ठीक है ना। एंड देन दे डिड नॉट हैव इनफ, आई डोंट नो इफ इट इज़ राइट वर्ड टू से, करेज टू गो एंड टेल देम कि यार नहीं मैं इंसान हूँ, ठीक है ना, अगर मतलब मेरी फैमिली में कोई इमरजेंसी हुई है सो आई हैव टू गो एंड अटेंड दैट, ठीक है। अगर पैटर्निटी लीव्स का कॉन्सेप्ट अब बहुत ज़्यादा बड़ा है, अभी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैटरनिटीज़ का तो है कॉन्सेप्ट, बट आई मीन आज की जनरेशन ये समझ पा रही है कि जो फादर्स हैं वो भी किस स्ट्रेस से गुजरते हैं यार, दे ऑल्सो नीड पैटर्निटी लीव्स, ठीक है। सो आहिस्ता आहिस्ता ये एक स्टेज सेट होता है। सो बहुत सारा काम हम मिलेनियल्स ने कोशिश करके किया है, जिसमें फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स, जिसमें वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, जिसमें सुबह 9 बजे ना आने पे छुट्टी ना कटना, ठीक है ना, ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं और ये कोशिश की है, वी हैड द करेज टू से इट एंड समहाउ इट गॉट एक्सेप्टेड एंड थिंग्स हैपेंड। सो टुडे अगर मैं एक मिलेनियन हूँ और मेरे साथ एक जेन वाई जेन एक्स का भी बंदा बैठा हुआ है तो मुझसे ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम करता है, ही ऑल्सो नीडेड दैट, ठीक है ना, बट इतना करेज उस वक्त नहीं था, इतना नॉर्म नहीं था कि जो ना आप उस स्टेटस को चैलेंज कर सकें। सो मिलेनियल्स डिड सर्टेन जॉब, अब उनके भी पर जलना शुरू हो गए हैं या उनको भी अब एक डर लगना शुरू हो गया कि यार इससे ज़्यादा कैसे मांगें, बट जेंसीज बिकॉज दे हैव कम इन विद अ फ्रेश माइंडसेट, बायस नहीं है कि यार हम मांग नहीं सकते, ये बड़ा मिडिल क्लास सोच है बाय द वे। Okay, anybody who comes from a rich background knows that this is not something that's taught in business houses. I don't know if you guys have experienced this or not, but onboarding हर organization में की जाती है, ठीक है ना। I've experienced कि एक resource onboard हुआ, उसकी onboarding में थोड़ा सा problem हो गया, 2 दिन उसको laptop नहीं मिला, he resigned. He said, I don't want to be treated like this. And we need more courageous people like this. Absolutely. So we don't have to fix Gen Zs, we have to fix the status quo. And काम होना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं इन चेयर्स पे बैठा हूँ या मैं कहीं पहाड़ों पे बैठ के काम कर रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, काम हो रहा है ना। एग्जैक्टली। सो आई थिंक देयर विल बी अ टाइम जब ऑफिसेज एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इंशाल्लाह और सब चिल करे होंगे अपने घर में। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस। यस, अ बिग another last round of applause for all of you and our wonderful community partner and our sponsor, People Perfect and Tech Titans. Please, another round of applause for them. Thank you for making these panel discussions possible. If we have these conversations, only then can we really share knowledge. And with that, क्योंकि आज एक दो दिन आगे हो चुके हैं हम Independence Day से, so Pakistan, yes, thank you.